So this is the first SimCat that we are reviewing. In fact, we have not reviewed formally any mock other than time. So maybe it's time to now start looking at the other ones, because time has really gone down the drain, if you ask me. If you compare, so this week we had an exposure to CL Countdown 6, mock, and SimCat 10. And of course, AIMCAT, if you ask me, after doing these two, the moment I looked at the different RCs there, I was so turned off that I did not even attempt it. It was so, I mean, sickening would be the right word, that I don't know what has happened, from where they are getting those ideas to bring such absurd, useless, illogical, abstract passages one after the other. So this time we are not going to review. And if it goes like this, then we'll not even review. And there is no need for you to even attempt, honestly speaking. Tomorrow I'll definitely share the PDF, but don't waste time on VARC. You can do the rest of the two sections if you want, but I would not recommend doing VARC. It's a sheer waste of time. We will pick up some of the questions from VA. Maybe a few questions from VA were okay, 2-3 questions. In VA also they had given 3 not summary questions, but some critical reasoning questions. Now I don't know what logic drives it. Why do they do like this? So anyway, that is for reasons best known to them. So we have done SimCat 10 this week. We have done Countdown Cat CL, and both were, I would say, balanced. Both were almost at par, I would say, in terms of difficulty level, in terms of interest level, in terms of question spread. So almost दोनों par पे लगी मुझे. One thing which I found with both of these mocks was that all the passages were doable. In fact, it was a little difficult to select 3 passages or 2 passages. Okay, we'll discuss today that out of these 4, which ones you should have done, which ones had a better probability of giving you more correct answers here. So अभी हम discuss करते हैं. So let me get your views. Okay, you have also, maybe, I don't know how many SimCats you've done. Some of you are already enrolled with IMS, so you may have been doing. I've had an earlier look at their mocks, and some of them are not really very good. Parajumbles were ridiculous, and summary questions also were not very good. But this time it seems they also have got their act together. So what are your views? Let me hear from you, and then we'll proceed. Yes, Aman? Sir, like VARC, I thought RC was doable, but still the questions were very, like, I found it difficult. Like the RCs which I chose, the questions were difficult, and I think I made mistakes there. Okay. So you didn't get the desired result, despite the RCs being Yes, readable. yes, sir. But So the same RC thing. was Same pretty thing. doable, readable, I'll say. So same thing I found in Countdown Cat also, and I've discussed that in my explanations, that first 2 RCs were so easy, but questions, they unnecessarily try to create complicated questions, and in that they mess up also. They give something very illogical also. So we will figure it out. We'll see which questions were. Couple of questions were suspect here, but we'll see. Any other views, anyone? Okay, so fine. नहीं है तो ठीक है. We'll go to straight away the questions. My perspective. So we'll go to the VA section straight away. So let's look at the VA section. We'll do the questions and then see whether it was easy, moderate, difficult. What's your view on this one? Was this a easy, moderate, or easy to moderate kind of a question? And I think easy to moderate. Easy to moderate. There are certain clues. There are certain clues. Very good. So first clue itself is presented in the first sentence. Their fears were reasonable. Now, if we look at there is no other sentence except 3, which talks about 2 people, right? Paul and Annie Ehrlich, whatever. So 3 and 1 become a mandatory pair, right? Now we start with, now they added fuel to the fire. That means there was something already wrong, and they added fuel to the fire. So obviously then 3 cannot come in the beginning. 3 will have to be somewhere in the middle or the end, whatever. So where do we start this from? So we start this with, again, industrialization would postpone the crisis. That means some crisis has been brewing.
So fourth also cannot start. So we can only start with 2. Right? So when we start with 2 and we've got a mandatory pair, so this makes things easy for us. We have only 2 options left here. Either we can go this or we can go this. Right? There is no other option. So that's the advantage of identifying a mandatory pair and the opening statement, and when the opening statement is different from the mandatory pair that you've identified. So ab isme, which makes more sense? Let's try to figure out. Okay, 2, 3, 1, 4 or 2, 4, 3, 1. So now let's try this. In 4, we say we postpone the crisis, but not forever. So is there any crisis mentioned in 1? Global population has doubled twice since to reach 8 billion. Is there a crisis here? I don't think so. I don't see any crisis in 1 that could be postponed, but not forever. Therefore, this is immediately ruled out, and the only option left is next one. So 2, 4, 3, 1. Malthus. So Malthusian theory basically is a old theory which says population double हो रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है कि धीरे-धीरे we'll run out of food and there'll be trouble. So 19th century में he warned that population growth would outpace agriculture and cause this. Industrialization होगा, it would postpone this crisis. So the crisis is this. Okay, the bouts of famine and pestilence. This was the crisis that is mentioned here. It would postpone, but not forever. Then in the 60s, they added fuel to the fire. Okay, so this fuel to the fire was added, and then their fears were reasonable. Okay, so 2, 4, 3, 1 becomes the correct order. So I hope we would have got it. So easy to moderate, I would label it, rather on the easier side. Okay, let's move to the next question. Okay, this one was globalization has been the military and socio-cultural globalization. So obviously, globalization is a broader term, and here it's written also have a long history. So again, we get a clue here that is there some other sentence that talks about something being there for a long time or from ancient times? Is there also have a long history? Somebody might connect 1 and 2 also. Has been a part of human history for a long time. Military and socio-culture also have a long time. So can we have 1 and 2? Or migration and climate changes have been driving factors since ancient times. So this can also connect to 2. Since ancient times, they have been driving factors. Military and socio have also had a long history. Globalization is simply the growth of interdependence. So we start with 1 here. Then we go to 4. Globalization is simply the growth. First we are saying it has been a part of history. Then we are saying it is what it is. And then we are left with 2. Whether we can go to 2 or 3. So it is better to go to 3 here because excuse me, somebody's microphone is on. Please switch it off. So we can't go to 2 after 1, after 4, because also have a long history doesn't have any precedent in 4. Therefore, we will go to 3. So we will go to 1, 4, 3, and 2. Since ancient times are also long history को वो कर रहा है और भी ज़्यादा. So इसको I would label as moderate to difficult. Okay, I would not call it easy. I would call it moderate to difficult because you might get lost here, and it might take a little bit of a time to do this. So इसलिए इसको moderate to difficult बोलते हैं. सर ये मेरा गलत हो गया था सर. तो कोई बात नहीं, गलत हो गया तो होते हैं. देखो गलत तो होंगे. पैराजंबल के बारे में आपको बता दूं कि अगर आपके 2 भी सही हो जाएंगे तो यू शुड कंसीडर योरसेल्फ लकी इन एनी टेस्ट. ओके, वेदर इट इज कैट में भी यही है. तो 100% इसमें हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता. ओके, आई कैन चैलेंज एनीबडी टू डू इट. Can't we do 4, 1, 3, 2? No, we can't do 4, 1, 3, 2. Because हो सकता है. देखो, again, that's why I said it's not a very good question. Okay, it's moderate to difficult. Not a very good question if you ask me. Okay, let's look at 4, 1, 3, 2. Globalization is simply the growth of this. Globalization has been a part of human history. See, generally हम इस तरह से बात नहीं करेंगे. We will first talk about the idea and then elaborate it. Okay, we will talk about the idea and then elaborate it. So we just normally when we do the idea and then elaboration. So idea or globalization as a term has been introduced in first sentence, and then we will go to what is globalization. So इसमें 1, 4 ही होगा. 4, 1 तो नहीं हो सकता. Okay, that is for sure. Yes, Disha. Sir, while I was attempting, I could figure out the pairs 3, 2 and 1, 4, but I placed 3, 2 first and then 1, 4. No, but you made a mistake because see, military and social globalization. Okay, this is a more specific thing compared to globalization. Globalization is a broader term.
So obviously, this two sentence will always come after globalization, and therefore that was wrong. Okay. चलो ठीक है. Let's move to the next one. इसके ऊपर we don't have to really spend too long a time. Okay. Now here, now see this one. In fact, I also did wrong. No, and I'm not able to really figure it out. अभी भी I'm not very clear. Okay, because देखो इसमें 1, 4 और 3 ये बहुत clearly block बन रहा है. Okay, there is a clear block of 1, 4 and 3. Despite being responsible for 35% of low and middle income countries' GDP and comprising the majority of non-agricultural labor, informal workers are not acknowledged as significant stakeholders in driving the global recovery. So we will start with, I started with 1. Okay, I started with 1 because that's a pretty good opening statement. And then moreover, the current policy debate centered on fiscal austerity ignores the threat that austerity policies pose to millions of livelihood worldwide. So this is moreover connects with this, that one is that we are not acknowledging these people as significant stakeholders, and moreover, by focusing on the fiscal austerity, we are ignoring the threat of these austerity policies on millions of livelihoods. But the fact that the economy relies on collective well-being of these. So this is a counterpoint now that we are doing this. We don't realize that our economies rely on the well-being of these, many of whom are struggling under the weight of rising health costs. And then I had put it in the end. 2, I had put it in the end. The health and debt crisis plaguing informal workers are intertwined, because here he talks about health, okay, rising health costs. So I had connected this with health and debt crisis. Okay, plague informal workers entwined and are mutually reinforcing. And I thought this was a pretty good closing statement as well. But as it happens, this bugger has given the answer as 2143. And I'm still not really convinced that why 2 should come in the beginning. The health and debt crisis plaguing are intertwined and mutually. 2 के बाद 1 का, I don't find any connection honestly between 2 and 1. So how has he gone from 2 to 1? Yes, let me field the question from you now. Yes, Bhuvan, first go. सर सेम मैंने भी सर सेम इस पैराजंबल में मैंने भी यही 1432 ही मार्क किया था. इवन मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये 2 पहले कैसे हो गया, क्योंकि सर ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ज्यादा कंपैरेटिवली सही है कि इसमें ये मतलब दब गए एकदम ही. या तो अगर स्टार्ट हो तो फिर मतलब थोड़ा अच्छा स्टेटमेंट कोई होना चाहिए था, क्योंकि स्टार्टिंग में लग नहीं रहा था कि स्टार्टिंग से कनेक्ट कर लो 35% या ऐसे कुछ इस तरह से, क्योंकि डेट क्राइसिस भी साथ में आ रहा है. डेट का भी कोई एक्सप्लेनेशन दिया नहीं इसके अंदर ज्यादा. करेक्ट, यू आर राइट. यस उत्सव, व्हाट्स योर पॉइंट? सर सेम मेरा भी यही पॉइंट था कि जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मैं इस बात पे कंफ्यूज था कि 2 को पहले लगाया जाए या पास में लगाया जाए. तो सर मैंने तो तुक्के से 2 पहले लगा दिया. फिर आपने तुक्के से पहले, तो कोई बात नहीं. यस, योगा स्मार्ट टैप, व्हाट्स योर नेम? यू रेज योर हैंड, आई डोंट नो योर नेम. हेलो सर, माय नेम इज गजेंद्र. सर एक्चुअली मेरा ये करेक्ट हुआ था, पर मेरे पास लास्ट 1 मिनट बचा था, तो मुझे पता था कि पूरा तो पढ़ नहीं पाऊंगा. तो सर फिर मैंने कीवर्ड्स देखे तो मुझे सेंटेंस नंबर 2 जो था वो इंडिपेंडेंट लगा, तो मैंने सिर्फ 2 उठाया और फिर मैंने कीवर्ड्स देखे मोर ओवर, डिस्पाइट एंड बट. तो मैंने मोर ओवर को पहले मतलब डिस्पाइट को पहले रखा, फिर मोर ओवर रखा और फिर बट को रखा, तो करेक्ट हो गया मेरा. चलो ठीक है, तो दैट्स फाइन. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग 1 और 2 और 1 के बीच में मुझे कनेक्शन नहीं दिख रहा. हाँ सर, वो कनेक्शन तो नहीं दिखा जब मैंने पढ़ा, तो फिर भी मुझे 143 तो बहुत क्लियर, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट ऑन दिस, एज यू राइटली डिसाइफर्ड, डिस्पाइट, मोर ओवर और बट. ठीक है, ये तीनों चीजें बिल्कुल सही है. लेकिन 2 जो है, ओके, 2 तो हेल्थ एंड डेट क्राइसिस प्लेगिंग इनफॉर्मल वर्कर्स आर इंटरट्वाइंड एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग. नाउ समबडी माइट से कि देखो ये सेंटेंस ओपनिंग स्टेटमेंट है क्योंकि ये इनफॉर्मल वर्कर्स इन जनरल बात कर रहा है. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल वर्कर्स इन थाईलैंड एंड इंडिया. दैट कुड बी अ रीजन, बट आई कुड नॉट रियली काइंड ऑफ, ठीक है, चलो अब एनीवे लीव इट. टू माय माइंड इट कुड वेरी वेल कम इन द एंड आल्सो. Okay, to my mind it could, there is nothing which says it cannot come in the beginning. Yes, Anubhav. Sir, matlab, I looked back into this set of sentences on the net. So what I found out was इन्होंने जो actual paragraph था वहाँ पे although being responsible करके start किया था, इन लोगों ने वो change करके despite लगा दिया, पर वो sequencing इसलिए बन नहीं रहा है वहाँ पे. But they have kept whatever was kept in the actual passage, the sequence, but they have manipulated with some of these keywords and jumble kar diya. That is precisely the reason why I keep telling that these things are not really, not really very
logical, because they keep tinkering. I have seen that happening almost everywhere, whether it is CL or Time. They clip something as per their own wish. They pick sentences as per their own wish from एक पूरा, अगर आप पूरा आर्टिकल देखेंगे तो उसमें एक सेंटेंस पहले पैराग्राफ से होगा, एक दूसरे से, एक तीसरे से, एक चौथे से. तो ऐसा कुछ भी करेंगे ये, ठीक है. And then they expect the student to figure it out, which is wrong, which is very irrational and wrong, and to some extent criminal also. Okay, this is cheating, nothing else. So that's why it's okay. I mean, we shouldn't feel bad about it, and that is why we cannot really also get all of these correct. Yes, Utkarsh, tell me. Sir, then we should consider 1432 as the right answer. नहीं, अब वो तो देखो, no, see, we can consider, but then we will not get any marks ना. उसने तो इसके हिसाब से marks दिए हुए. तो So the logic that you gave, I did the same way only. That's why I'm asking. No, as in I should apply the same. Yeah, no. So I mean, you can keep it like this. Yes, for learning, for academic purposes, yes. I mean, I still stand by this. I stand by this. Okay. Chalo, all right. Let's go to the next one. कोई बात नहीं, ठीक है. So this happens. This happens. Okay. So then this will continue to happen. So there's nothing to feel bad about it or good about it also. Many people believe that the best way to learn a new language. तो इसमें अब ठीक है, इसमें इसके जो दोनों ये थे fill in the blank जो थे वो easy थे इस बार, I would say, और उसमें कोई ऐसा problem नहीं था, logical भी थे. Many people believe that best way to learn. There are many methods for learning a new language from textbooks, classes. However, many languages, the most effective way is through immersion. Right? So अब इसने यहाँ पे already बता दिया है कि many language learners believe that most effective way to learn a language is through immersion. तो उसके बाद में फिर इस सेंटेंस का आने का कोई मतलब ही नहीं है. I mean, if you put it here, then it is just a repetition. Immersion programs can be found in Word. I mean, there is absolutely no sense of putting this sentence in any place except one. Okay, so कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि आप वापस रिपीट ही करोगे ना. आप रिपीट ही करोगे. आप इस चीज को रीइटरेट कर रहा है ये. Now you might say कि यहाँ पे भी तो रिपीट कर रहा है, but no, that's not the same thing, because उसने ऑलरेडी एक राइटर लगा दिया है यहाँ पे. उसने पहले बोला कि many people believe the best way is through immersion. There are many methods. However, many language people believe that most effective is through immersion. Right? So this is okay. But इसके बाद में अगर आप same sentence लगाओगे तो then that is not logical. So the only answer is one. Fourth word पे आ ही नहीं सकता ये. देखो already आपका immersion वगैरह ये सब ये अगर see already he has said here ना that many language learners believe that the most effective way to learn a language is through immersion. Now, after this, at any place, this sentence cannot come. There is absolutely no sense. Okay, इसलिए ये कहीं पे और आ ही नहीं सकता है. Yes, मानव. सर, आपका जो भी आपने बताया वो समझ में आ गया, बट फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बहुत एक ही चीज रिपीट हो रही थी. मतलब 1 में भी वो बोला, फिर बाद में भी. ऐसा नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है. सोल्यूशन में ऑप्शन 2 दिया है. नहीं यार, 1 दिया हुआ है. वहाँ 2 दिया हुआ है. 1 दिया हुआ है. सर 1 ही है. 1 है भाई, इसमें 2 नहीं है. आप देख लेना. 1 है. Okay, I had also marked 1 only because I देखो यार, ऐसा आप ये नहीं कह सकते हो कि 2 पे लगाया है, 1 पे लगाया, रिपीटिशन है. You cannot say that, because 1 पे लगाने के बाद में बीच में एक राइडर आया है यहाँ पे, फिर उसको काउंटरैक्ट करके बोल रहा है वो. तो इट इज नॉट द सेम थिंग. पुटिंग एट 1 and 2 आर 2 डिफरेंट थिंग्स. ओके, चलो ठीक है, इनफ यार. लेट्स नॉट डिस्कस, ब्रेक आवर हेड ऑन दिस क्वेश्चन. हो गया, अभी कोई कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, in recent years, however, there has been a growing trend towards sustainable and ethical fashion. Again, this is not very difficult question. The fashion industry is one of the most influential. It has a significant impact. Fast fashion has led to a throwaway culture. Clothes are worn. This has resulted in massive. सर, ये waste and pollution से मिलता है कहीं पे जो लास्ट में. मतलब अब आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि in recent years, however, there has been a growing trend towards sustainable and ethical fashion. This include, अब अगर आप इस पे यहाँ पे 2 पे नहीं लगाते हो इसको, तो this includes using environmentally friendly materials. मतलब क्या हो गया? आप यहाँ पे कह रहे हो कि it is a massive amount of waste and pollution. So if you don't put it here, then this sentence and this sentence together don't make any sense at all. Therefore, this has to come nowhere except 2. Earphone है, देख तो कहीं. Okay, so this was not difficult. This was okay. I hope you got it correct. चलो आगे चलते हैं. All right. Now we come to this question. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे चैलेंज है. ठीक है, थोड़ा सा मुझे चैलेंज है, वो बता दूं आपको. तो बोल रहा है एलियन रेस केम टू अर्थ लाइंड अप ह्यूमंस इन अ रो. वन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंसेस. ठीक है, एक अपराइट पोजीशन की हमारा अपेरेंटली फरलेस बॉडीज. तो अगर इंसान को बंदरों के साथ में खड़ा कर दिया जाए तो हमारी बॉडी के ऊपर फर नहीं होता जैसा उनकी बॉडी पे. ठीक है, हेयर होते हैं हमारे, लेकिन
जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो वेलस हेयर जो भी है उसका नाम, अब साइंटिस्ट को इसके पीछे रीजन नहीं पता है कि ये कोर्सर थिकर फर से कैसे हम लाइटर वेलस हेयर पे आ गए, एंड दे डोंट नो एग्जैक्टली व्हेन इट हैपेंड. स्टिल several theories have been suggested as to what could have sparked the loss of our hair. The most dominant view is so-called body cooling hypothesis, also known as savanna hypothesis. This points to a rising need for early humans to thermoregulate their bodies as a driver for fur loss. ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क्या बोलता है. Humans are the only primate with furless bodies, and the body cooling hypothesis is the most dominant view among scientists for fur loss. तो ऐसा कहीं पे बोल रहा है कि humans are the only primate. First of all, are humans and primate the same? चलो ठीक है, all other primates, humans are only primate with furless bodies. ऐसा बोल रहा है क्या कहीं पे भी कि humans नो सर. हाँ, ऐसा भी नहीं बोल रहा कहीं पे वो, है ना. तो body cooling hypothesis is the most dominant view among scientists for loss at fur at unknown time in evolution. Unknown time in evolution, and they don't know exactly what it happened. These are also two different things. ठीक है, तो ये कोई बहुत अच्छी समरी नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं. The need to thermoregulate their bodies in savanna environment led to human fur getting replaced. Now my question to this is, what is savanna environment? सर ये बताया ही नहीं. ये बताया क्या इसमें? नहीं सर. नहीं सर, मिक्स कर दिया सर इन्होंने. उसने तो सिर्फ savanna बता दिया. तो am I a subject matter expert to figure out that savanna refers to environment? I don't think so. चलो इसको तो बाहर करो. सर 2 और 4 तो ऐसे काट दिए थे सर. अब आप सेम और 4 आंसर दिया. अब आप 4 को देखो. Early humans lost their fur due to need to regulate body temperature in the savanna environment. Now, from all practical purposes, this looked like a good summary, better summary, except for this thorn in the stem. ये जो है ये कांटा, मतलब मैंने इसको I was about to mark this, then this stopped me. कि सवाना एनवायरनमेंट क्या बोला है उसने तो कहा है कि सवाना हाइपोथेसिस. तो समरी में अगर उसने नहीं बताया मुझे व्हाट इज सवाना एनवायरनमेंट, तो बॉडी कूलिंग हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज सवाना हाइपोथेसिस करके बताया है. हाँ करेक्ट. तो मैंने ऑब्वियसली इसको देखते हुए मैंने 3 मार्क कर दिया. यस सर. है ना, जो कि आप लोगों ने भी कई लोगों ने किया हो. सर मैंने तो फर्स्ट ही कर दिया था, क्योंकि वो ओनली प्राइमेट को भी मैंने इन्फर कर लिया कि ह्यूमंस है, प्राइमेट से तो अलग ही है, फरलेस बॉडी है उनकी. और अननोन टाइम को मैंने उससे इन्फर कर दिया, जिससे आप कह रहे हो कि डोंट नो एग्जैक्टली टाइम. तो मेरे को तो 1 ही, इन सब में से तो 1 कर दी थी मैंने. इन सब में आपने 1 कर दिया. नहीं, लेकिन 3 में क्या दिक्कत है? द बॉडी कूलिंग हाइपोथेसिस पॉइंट्स टू अ नीड, rising need for early humans to thermoregulate their bodies as a driver for fur loss during evolution. This also looks okay ना? What is the problem here? During evolution वाला एक बार बता दो. During evolution ही है ना भाई, कब हुआ ये नहीं पता, लेकिन during evolution ही हुआ है ना वो. When exactly it happened, so anyway, the point is that I also marked 3, but I was also surprised to know that this great person, whoever this guy is, has marked 4th as the correct answer, and he's trying to justify the savanna environment, which I don't buy his logic. If you have not mentioned here savanna environment, you cannot put it in the summary. This is wrong. This is plainly wrong. This cannot be accepted. Okay, अगर आपको savanna environment है तो you should have written over here somewhere ना. How can somebody say savanna hypothesis से he can refer it to that in the savanna environment? मतलब what kind of a idiocy is this? So I mean, that's all I have to say, that this is simply stupid. And these kind of summaries and summary questions only unnecessarily lead to confusion in students' minds that they don't know, उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इस तरह की चीजें उनके दिमाग में आ जाती हैं. तो this is all again fooling people. Yes, let me hear from Tanuj. What is your view? Yes sir. Sir, I just want to know कि अगर इन्होंने ये 4th करेक्ट किया है सवाना एनवायरनमेंट को लेकर के, तो फिर सेकंड कैसे इन्होंने जस्टिफाई किया कि गलत है, अगर ये कंसीडर कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट को तो? The need to thermoregulate their bodies in the savanna led to human fur getting replaced. हाँ, ये भी बात सही बोल रहे हो आप. सर यहाँ पे हाइपोथेसिस नहीं मेंशन्ड है सर. चलो ठीक है, जो भी है, लेकिन हाँ बॉडी कूलिंग हाइपोथेसिस नहीं मेंशन्ड है, बट ठीक है. लेकिन अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हो तो आप उसको भी बोल सकते हो. फिर तो देखो, बॉडी कूलिंग हाइपोथेसिस को ही तो सवाना हाइपोथेसिस बोलते हैं, तो सवाना एनवायरनमेंट क्यों बोल रहे हैं? एनीवे चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब इसका जवाब देखो, मैं तो दे नहीं सकता, मैंने तो ये बनाया नहीं. सर इससे तो मल्टीपल आंसर आ गए. वंशिका बोलिए, व्हाट इज द पॉइंट?
सर मैंने थर्ड ही मार्क किया था, बट फोर्थ वाले में ये सवाना वाले पॉइंट के अलावा ये तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना कि लॉज देयरफॉर ड्यू टू द नीड टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, मेरे को इसमें लग रहा था कि इन्होंने कॉज और वो चीज तो उल्टी ये कर ठीक दी। है, नहीं नहीं ये ठीक है, दिस इज नॉट प्रॉब्लम, दिस इज ओके, ठीक है। देयर वाज अ राइजिंग नीड टू thermoregulate their bodies and therefore that led to the losing of this hair fur loss, right? तो वो ठीक है, बट प्रॉब्लम सवाना में है, ठीक है ना, प्रॉब्लम सवाना में। यस उत्सव। ये सर मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्होंने पैसेज लिखा सवाना हाइपोथेसिस के बाद एक सेंटेंस होगा मे बी हाँ होगा, सवाना एनवायरनमेंट हाँ करके, हाँ तो बिल्कुल, उनने वो यहाँ से हाँ ओमिट उन्होंने कर मिस दिया। कर, करेक्ट, आई फुल्ली एग्री विद यू, दे आर ऑल केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यस बानी। यस सर। सर आई मार्क 3, बट मेरा रीजन थोड़ा अलग था 3 मार्क करने का, कि लाइक पैसेज में मुझे ऐसा लगा कि लास्ट लाइन में वो बता रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी है कि ये रीजन रहा होगा, और सेकंड और फोर्थ में उन्होंने डायरेक्ट लिखा है लेड टू ह्यूमन फॉर गेटिंग, एंड फोर्थ में लिखा है लॉस देयर फॉर ड्यू टू। तो फिर मैंने थर्ड में देखा कि उसमें दिया हुआ है कि पॉइंट्स टू है, तो फिर इस वजह से मैंने थर्ड मार्क किया था। तो वाज दिस करेक्ट? ठीक है, देखो आपका भी लॉजिक ठीक था, आपने थर्ड मार्क किया तो सही था आपका लॉजिक, बट क्या करें, भगवान को मंजूर नहीं है वो, ठीक है कोई बात नहीं। बट सो 3 अगर आपने मार्क किया तो यू शुड फील ओके, अगर आपने फॉर दैट मैटर 1 भी ठीक है, मतलब इससे तो बेटर ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, लेट्स मूव। ओके, these things happen, so only thing is they are happening more frequently than what we would be comfortable with, but that's okay, that's okay. Let's look at the next one. So अब यहाँ पे ये कह रहा है कि today we tend to look back on aristocrats with a great deal of cynicism regarding them as parasites and all of that. We have to recognize that, however, in aristocratic society, there was deep-rooted belief that honor or esteem was not due to everyone, but only class people risk their lives. सेम फीलिंग अभी भी एग्जिस्ट करती है जब हम अपने सोल्जर्स और इनके वो होमेज देते हैं, और फायरमैन। डिग्निटी इज नॉट ड्यू टू एवरीवन, लीस्ट ऑफ ऑल टू दोज हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज देयर ओन वेलफेयर। तो अगर आपने खुद का आदमी भला करता है तो उनको डिग्निटी ड्यू नहीं है, उनका हम सम्मान न करें तो चलेगा। एरिस्टोक्रेट थॉट ऑफ देमसेल्व्स बेटर देन अदर्स, possess what we may call megalothymia, the desire to be recognized as superior. Pre-democratic society rested on foundation of social hierarchy, so this belief in inherent superiority was fundamental to the, ठीक है, बहुत सारी बातें बोली है इसमें, वी विल सी किस में आता है। सोशल ऑर्डर इन प्री डेमोक्रेटिक हायरार्किकल societies was based on the belief that aristocrats were inherently superior. The belief, however, still echoes in modern societies. बहुत ही गलत है ये बिलीफ, however echoes in modern societies वाली बात नहीं है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट एरिस्टोक्रेट्स को नहीं देते, हम रिस्पेक्ट सोल्जर्स को देते हैं, ठीक है, तो ये इसमें बिल्कुल गलत है। ये belief in inherent superiority of a certain class was fundamental to maintaining social order in pre-democratic societies, and this belief still persists in modern societies. Now, this is different from one in the sense that here he named that society or a class as aristocrats. Here we say that superiority of a certain class. So in that era, it was the aristocrats. In today's era, it is the soldiers. So this still is okay. At least इसमें कोई ऐसा distortion नहीं है. We can keep this. Aristocrats are still respected in modern societies. ऐसा नहीं बोल रहा है ये कि aristocrats are still respected for their bravery. No. He's saying जैसे aristocrats को उस जमाने में respect किया था, वैसे आज हम अपने soldiers को respect करते हैं, ठीक है, तो this is not correct. Megalothymia, the desire for recognition as superior, was a defining trait of aristocrats in pre-democratic societies and has persisted to some extent. Again, this doesn't give you that same feeling. Desire for recognition, यहाँ पे soldiers की कोई desire नहीं होती recognition करने की, वहाँ पे तो aristocrats खुद चाहते थे कि उनको superior recognize किया जाए, यहाँ पे soldier थोड़ी चाहता है कि मुझे superior recognize किया जाए, तो this also is a distortion. So only thing left is 2. That's it. So this is okay. Nothing wrong with this question and the answer here. Do we agree? Yes, Bhuvan. ये समरी वैसे तो सही बन गई थी मेरे से, पर सर उसमें मैंने तरीका थोड़ा अलग लगाया था। जैसे फोर्थ में सम एक्सटेंट देख के पहले 4 एलिमिनेट कर दिया था कि सम एक्सटेंट कहीं कहा नहीं है ऐसा कुछ कि सम एक्सटेंट या कुछ इस तरह से। थर्ड वाला तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया था। फर्स्ट वाले में सर थोड़ी दिक्कत हुई फर्स्ट और सेकंड सोचने में, वही यहाँ पे अरिस्टोक्रेट्स वाला थोड़ा समझ आता तब जाके फर्स्ट एलिमिनेट हुआ था। नहीं देखो, इसमें आपको सिंपल ऐसा देखना था कि भाई जैसे पुराने जमाने में लोग एरिस्टोक्रेट को रिस्पेक्ट करते थे, डिग्निटी देते थे, आज के जमाने में लोग सोल्जर्स को देते हैं। तो अगर आप ये बोलोगे कि पहले के जमाने में एरिस्टोक्रेट को देते थे और आज भी सेम बिलीफ स्टिल एकोज, तो वो गलत है ना। ये आपने नहीं बताया कि वो बिलीफ है, लेकिन किसके लिए है, वो सोल्जर्स के लिए है, नॉट फॉर एरिस्टोक्रेट्स। ये समझने में टाइम लगा था ये वाला मेरे को, ये फर्स्ट वाला। ठीक है कोई बात नहीं, ये क्योंकि बहुत लंबा है तो टाइम तो इसमें थोड़ा ज्यादा लगेगा। और इसमें
I mean, no answer also stares at you very clearly यार ये बिल्कुल सही आंसर है, बट ठीक है, इसमें एलिमिनेशन से होगा कि बाकी तीनों के अंदर बहुत बड़े बड़े डिस्टॉर्शन, तो जो एक बच गया विदाउट डिस्टॉर्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑलराइट, लेट्स गो टू दिस. For centuries, they have traced, debated technology's role. Some have made the case technological determinism. Technological process which is an autonomous has been the primary factor influencing the course. In the most extreme expression, human beings are little more than sex organs of the machine world. The essential role is produce more sophisticated weapons to fecundate machines as bees fecundate. Fecund मतलब होता है to make fertile. Okay, to make fertile. Fecund is basically fertile. So humans fecundate machines as bees fecundate plants until technology has developed the capacity to reproduce itself. At that point, we become dispensable. उस टाइम पे हमारी कोई जरूरत नहीं रहेगी. ठीक है, तो in the extreme determinist view, humans have become mere producers of tools. What is wrong with this? This is not a correct statement. What is wrong here? He says extreme determinism अलग चीज होती है और technological determinism अलग चीज होती है. You cannot replace one with the other. ये टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, तो इसको आप ये नहीं कह सकते हो कि एक्सट्रीम, मतलब यहाँ पे तो इसने क्या किया है कि टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म पहले बता दिया, फिर उसके बाद में जहां जहां पे उसने डिटर्मिनिज्म लिया है, तो देयर वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म दैट इज टॉकिंग अबाउट. बट देन इन दिस पर्टिकुलर समरी ही हैज नॉट इवन टॉक्ड अबाउट टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म, राइट? देयरफॉर दिस इज रॉन्ग. Technological determinism in its extreme form asserts that civilization is beyond human control. ये बिल्कुल गलत है. And eventually when technology can reproduce itself, वो तो ठीक है, human ये पार्ट ठीक है, चलो, लेकिन civilization is beyond human control, this is not supported, right? So this is wrong. In the extreme view of सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर सर यहाँ पे मेंशन तो है पैसेज में कि ऑटोनोमस फोर्स आउटसाइड मैन्स कंट्रोल. एक मिनट, कहाँ पे, कौन से बता रहे हो आप? सर थर्ड लाइन पे आपने एक्सप्लेन भी किया है. Argued that technological progress which they see as an autonomous force outside man's control. Now, can you equate it with civilization? Sir, autonomous force is probably the technological determinism. See, technological determinism is a theory. Okay, it's a postulate. That based on this postulate, he says that this technological progress, which they see as an autonomous force beyond man's control, has been the primary factor influencing the course of human history. So that means the technological process, and it is an autonomous force outside man's control. But can we then infer that on the basis of this, that civilization is beyond human control? Civilization is a very broad term. Here he is saying that human history का जो course है, वो influence हो रहा है, influencing. So we cannot say that civilization is beyond human control. This is okay, sir, making sense. Yeah, understood. Yes, Vanchika. Sir, first में जो humans indispensable लिखा है वो भी तो गलत है. Dispensable. अच्छा, sorry. Indispensable. Yes. Correct. Good that you pointed out. I missed it out. Dispensable होना चाहिए. हाँ, ये तो बहुत बड़ा error है. Correct. This is a big error. Right. Okay. So that's why this is not correct. Second, in the extreme view, humans become mere producers of tools, and technology eventually self-replicating. It becomes self-replicating, making humans dispensable. This looks okay, no? According to sociologists, this guy, technology is deterministic, progressing with an autonomous force beyond human control to eventually make. Again, this doesn't capture the whole thing. Technology is deterministic. Technological determinism एक concept है. तो आपको ये नहीं कह सकते हो टेक्नोलॉजी इज डिटर्मिनिस्टिक. ओके, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू प्रेजेंट इट. थर्ड बिकेम द करेक्ट आंसर, राइट? सो आई वुड से दैट 5 out of this, 5 out of 8 would be at par here, a good score here, because this was okay, this you could have done. This was maybe challenging for you, fine. This was also, anyway, this was an absurd question. ये दोनों इसके ये इजी थे, ठीक है. Those both the fill in the blanks were easy. This was again a dispute, but these two could be done. Okay, these two could have been done. Yes, Manav. सर आखिरी वाली समरी में एक चीज पूछी थी मुझे. बोलो. सर जैसे हाँ सर पैसेज में से लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट द सोशियोलॉजिस्ट वेब एंड डब्ड
वेबलेन डब्ड और यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिस्ट, तो ऐसा बोल सकते हैं? मतलब उसने डब करा और अकॉर्डिंग डिफरेंट चीज हो जाएंगी ना? नहीं से बोल सकते हो मतलब मैंने वहां से लिमिट करा तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो सी अकॉर्डिंग टू दिस टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म इक्वेट्स दिस प्रोग्रेस विद एन ऑटोनोमस फोर्स, ऐसा करके कुछ दिखता तो आप बोल सकते हो। ओके ओके, और दिस हैज बीन कॉल्ड एज टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म बाय दिस गाय, ठीक है, तो बोल सकते हो, बट ठीक है, एनीवे सो good score 4 to 5, 4 to 5 is a good score, 5 is a good score, 5 is a good score here, considering that there are some absurd questions. 4 to 5 is a good score. All right, let's move to the passages. Now when we come to the passages, what we find is that not very difficult. Okay, we read this couple of sentences, we see azulejo tradition, little polished stones, tile work. Okay, concrete. See, when you start reading and you find that you could relate to it in some way or the other, tile work दिख रहा है आपको, ये सब मटेरियल दिख रहा है, तो कंक्रीट चीजें हैं, तो डेफिनेटली इसको शो में करेंगे हम, we'll keep it. Then we look at the second one. Subfield of urban history has its own institutions. They have paid little attention. Global history, urban history आ गई, urban studies, cities are all products. तो cities के बारे में तो हमें पता है, स्पेशली एथलेटिक, न्यूयॉर्क, ब्यूनो एरी, लिटिल इटली, शिकागो स्कूल का पैसेज हमने किया हुआ है, कहाँ पे किया हुआ है बताइए? कैट के प्रीवियस ईयर में, कैट के कौन से कैट स्लॉट? 22 स्लॉट 3 शिकागो स्कूल का क्या कहना था कि जो माइग्रेंट्स होते हैं, अगर उनका बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है फ्रॉम द लोकल पीपल, देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ क्राइम एंड लॉट ऑफ डिसऑर्डर, है ना? तो ये वही शिकागो स्कूल को इसने रेफर किया यहाँ पे, तो ये भी ठीक है, कर सकते हैं। ओके, मे बी नॉट बिफोर एजुलॉजी बट आफ्टर एजुलॉजी कर सकते हैं इसको। तो अभी तक मेरे दिमाग में 1 और 2 आ गया है, ठीक है। थर्ड पे गया मैं, मॉडर्न हैप्पीनेस रेवोल्यूशन। अरे वाह, हैप्पीनेस रेवोल्यूशन के ऊपर तो बहुत सारी बातें होती हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ हैप्पीनेस, मास प्रोड्यूस प्लास्टिक, दिस इज अ गुड थिंग टू हैंडल, गुड आरसी टॉपिक, तो इसको भी रख लेंगे हम। रादर आई वुड से आई विल डू फर्स्ट 3 and then I'll do 2 maybe, and then let me look at 4. 4 talks about some treatment effect and selection effects, Marine Corps, admissions office, agency, American Ivy Leagues। ठीक है, ये भी मुझे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रही इसमें भी, बट अब क्या करूँ, ठीक है, 4 में से एक ऑर्डर तो बनाना है मुझे, तो आई फील वेरी कंफर्टेबल विद द फर्स्ट वन। ये समन तो फोर्थ वाले में लैंग्वेज इजी थी ना वो, मतलब कंपेयर करें बाकी से तो मतलब यस सर, फोर्थ वाले में लैंग्वेज काफी इजी थी, मतलब फर्स्ट वाले से कंपेयर करें तो। एक बार बताऊं मैं आपको, मेरा एक्सपीरियंस जो क्या कहता है कि इस तरीके से जो ये लैंग्वेज इजी नहीं है। देखो, एक तो ये सोशल साइंटिस्ट है, एक ट्रीटमेंट इफेक्ट है और एक सिलेक्शन इफेक्ट है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, ट्रीटमेंट इफेक्ट और सिलेक्शन इफेक्ट, नाउ आई हैड नॉट come across these words during my entire reading history. I didn't have too much of an idea about this, and therefore it gave me a little bit of a this thing कि ये इसको बाद में करना बेटर हो, ठीक है। And I was proved right also, क्योंकि इसमें 1-2 क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी हैं। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। अगर आपके सही हुए तो कोई बात नहीं, सी अगेन इट्स ऑल अ प्योरली पर्सनल पर्सपेक्टिव। If you did this and you got all the questions correct, that's great, nothing to take away from that. Yes, योगा। हेलो सर। हाँ सर, एक्चुअली मैं बोल रहा सर, मैंने 4th से स्टार्ट किया था। एक्चुअली मैंने इसको इसीलिए सेलेक्ट किया कि सर मैं यूजुअली साइकोलॉजी और इन सब की स्टडीज के बारे में बहुत ज्यादा रीड करता हूँ, तो मुझे ये काफी इजी लगा कि एक फिनोमिना इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर उसके साइड इफेक्ट्स या फिर कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज बताए जाएंगे, तो काफी इजी होता है फिगर आउट करना मेरे लिए। तो कितने सही हुए उस हिसाब से मैं सर, मेरे 3 करेक्ट हो गए सर इसमें, एक ही रॉन्ग। that's pretty good। ठीक है, तो अगेन if it is your sweet spot then you did it first, absolutely fine। देखो, हर एक को यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं होता है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ या मेरे को जो अच्छा लगा वही आपको भी लगे। एवरीबडी हैज हिज और हर स्वीट स्पॉट्स। तो आपने अगर इसको पहले किया है एंड यू गॉट 3 out of 4 करेक्ट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, सो देयर इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दैट। ओके, my perspective of talking about first taking this was that this is something which I mean tile और ये architecture और ये सब चीजें काफी I mean I find it very concrete, तो ठीक है, इसको पहले कर सकते हैं, कोई बात नहीं।
तो इसमें इसमें ये बताया कि यहाँ पे पोर्चुगल में ये ट्रेडिशन है, अजूलेजो ट्रेडिशन है यहाँ पे, ये लिटिल पॉलिश स्टोन। तो ये टाइल को ले लेके जैसे बाकी की जो कल्चर्स में करते हैं कि टाइल्स को सिर्फ डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने टाइल्स को यूज करके दे कंप्लीटली डिफाइन द आर्किटेक्चर इटसेल्फ। ओके, दैट मीन्स टाइल्स जो होती हैं दे बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द होल थिंग एंड दे ब्रिंग इन लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। तो ये टाइल वर्क कब से स्टार्ट हुआ? 13 में, जब से मूर्स ने इन्वेड किया इनको और अपना कल्चर लेके आए। लेकिन 16th सेंचुरी में इट बिकेम अ पॉपुलर फिक्चर एंड देन powerful leaders in monarchy or church commissioned the mosaics and production started to take place in the country. So this gives you a little bit of a history and then the material used is all of this. इसमें क्या होता है, देखो इस तरह के पैसेज करने में क्या है ना, फायदा क्या होता है कि आप ये सब चीजें फटाफट गो थ्रू करके स्किप कर सकते हो एंड वेट फॉर द क्वेश्चंस। जैसे यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ का कोई सेंस नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके, दिस वाज अ क्वेश्चन दैट टॉक्ड अबाउट हाउ दिस टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। Okay, what is the process that gives them the color and blah 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 blah. तो इसको इनफैक्ट व्हेन आई एम रीडिंग दिस आई वुड नॉट इवन गो थ्रू दिस, आई वुड जस्ट स्किम थ्रू इट। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आई विल कम बैक हियर। दैट इज एडवांटेज ऑफ सच पैसेजेस कि इसमें आप यू कैन काइंड ऑफ सेव टाइम बाय स्किपिंग। वो वाला पैसेज है ना, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा हर चीज। एनीवे, नथिंग टू टेक अवे बट जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग यू माय पर्सपेक्टिव। तो ठीक है, अब ये वन ऑफ द फर्स्ट थिंग टू नोटिस द मॉन्यूमेंटल साइज ऑफ द प्लेसेस। मतलब ये ह्यूज स्पेसेस होती हैं यहाँ पे, कवर करते हैं इसको। ओके, दिस सेंस ऑफ मॉन्यूमेंटलिटी समथिंग वेरी स्पेसिफिक। अदर countries use these tiles to decorate walls and buildings, but not to the same extent, in the same deliberate way. To an untrained eye, this might look like geometric shapes placed in, but the mosaics are created specifically for the architecture work. ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको पढ़ते चले जाओ। इन अदर कंट्रीज आप टाइल हटा दोगे और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपने अगर उसके अंदर फिगरेटिव सीन्स होते हैं तो दे टाई इन टू दैट प्लेस एंड कॉन्टेक्स्ट, तो यू कैन नॉट मूव द टाइल्स अवे फ्रॉम वन बिल्डिंग टू द अदर। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि इसमें हम नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ठीक है, जो पहले इसमें इस्लामिक मोटिव्स आ गए, देन उसके बाद में इसमें सेंस ऑफ सीनोग्राफी आ गया, लोकलाइज हो गया, फाइन, गुड। इवेंचुअली दे वर अप्लाइड टू फसाड्स ऑफ बिल्डिंग्स, मोर मैनेजेबल, लेस एक्सपेंसिव वे ऑफ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर द अर्थक्वेक। ठीक है, ड्यूरिंग 20th सेंचुरी टाइल वर्क इन पब्लिक सेटिंग इज लेस कॉमन। वहाँ पे स्कल्पचर नहीं होते, जैसे इटली चले जाएंगे आप, फ्रांस चले जाएंगे, तो वहाँ पे पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक स्क्वायर्स में you will find a lot of sculptures, but यहाँ पे you have walls covered with azulejos. Okay, so they become a medium for contemporary artists to express it in work. So my point of doing this first was to save time, and then I could, मतलब ये तो 1-1.5 मिनट में, 2 मिनट में ये पैसेज आप पढ़ के समझ सकते हो पूरा, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। You can just simply go to the questions. According to the passage, azulejos combine all these artistic and cultural elements except. Okay, तो इसमें क्या होता है? मोन्यूमेंटल साइज कैनवसेस। कैनवस क्या होता है? तो जो छोटा व्हाइट बोर्ड आता है ना, सर जिसके ऊपर कैनवस पे पेंटिंग होती है ना, पेंटिंग होती है। तो यहाँ पे क्या कैनवसेस की बात हुई है कि पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर? ये तो मॉन्यूमेंटल साइज ऑफ द प्लेसेस, ये तो बिल्डिंग्स होती हैं, और बिल्डिंग्स के ऊपर जो उसका एक्सटर्नल जो फसाड होता है उसके ऊपर ये लगाते हैं टाइल्स। तो इसमें कैनवस कहां से आ गया? तो ये तो बहुत सिंपल एलिमिनेशन है, मतलब इसमें तो आंख बंद करके आप 1 पे मार्क करो और आगे चलो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, isn't it? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, आधे सेकंड का क्वेश्चन है ये। बाकी चेक कर लो आप, ट्रेडिशनल एज वेल एज कंटेम्प्रेरी मोटिव्स रिफ्लेक्टिंग पोर्चुगीज कल्चर। ये तो इसने बताया है कि भाई ये देखो यहाँ पे फीचर इस्लामिक मोटिव्स एंड देन लोकलाइज हो गया, और फिर उसके बाद में यहाँ पे कंटेम्प्रेरी कल्चर भी आ गया है, तो सब चीजें आ गई है इसमें। तो ये दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक पैटर्न एंड नॉट वर्क ये भी दिया हुआ है, सेंस ऑफ सीनोग्राफी ये भी दिया हुआ है। तो ये चीज एक बार आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया, सारी चीजें दी हुई है। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट मेक्स azulejos tie into that place and that context। तो ये जो इसने कहा है कि azulejos जो है ये tie into that place and that context, ये किस उसमें कहा है, राइट? व्हाट मेक्स, तो इसका हम मतलब सिंपल निकाल सकते हैं, टाइल्स आर सोर्स, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। टाइल्स आर बेक्ड, देखो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में टाई इनटू दैट प्लेस एंड कॉन्टेक्स्ट कहां लिखा हुआ है? लेट मी सी वेयर इट इज, थर्ड पैरा लास्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि आप, वो उसने बताया कि आप टाइल्स को इधर उधर ले जा सकते हो दूसरी कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर जो टाइल जो ये यहाँ की जो ये azulejos है
ये इसमें फिगरेटिव सीन्स होते हैं और वो उस पर्टिकुलर प्लेस से टाइड होती है, उस कॉन्टेक्स्ट से। तो इन दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे तो सोर्सिंग की बात हो रही है, बेकिंग की बात हो रही है। Ties are assembled and placed on old buildings to decorate. Again, this is not what he's saying. Mosaics are designed specifically for the architecture of building. That means it is tied into that place. So very clear answer. Yes, Anubhav, बोलिए। सर मुझे डाउट क्वेश्चन 1 में था। सर यहाँ पे ऑप्शन 4 में रिलीजियस इवेंट्स की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो पर रिलीजियस इवेंट्स का तो कुछ मेंशन नहीं है सर ऐसा। तो सर व्हाई शुडंट बी 4 द आंसर? So then how would you eliminate one? Can you find any explanation of canvases? मतलब I thought that canvas was they were trying to represent some designs and drawings that were there in the tiles. Drawing कहाँ है यार? Canvas तो पेंटिंग होती है ना। See, canvas मतलब क्या होता है? Canvas is a place where you paint, right? Okay. दूसरा, एक मिनट, ठीक है। आपने, चलो, let me consider for a moment that you are looking at it metaphorically, right? Yes. You are not looking at it literally, correct? Yes. Now, how can you then explain resilient and resistant to elements like rain, sun and fire? See, if you are looking at it metaphorically, fine. जैसे हम बोलते हैं ना कि he was given a huge canvas. जैसे क्या होता है कि सपोज करो कोई कंपनी में नया CEO आया, तो उसको उन्होंने कहा कि यार you are free to do whatever you want with this company. That means you're free to implement whatever policies you want to implement. So we are giving you a huge canvas where you can kind of, paint, figure it metaphorically, the picture of your lifetime, whatever. तो उसको फिर हम metaphorically treat करेंगे ना. We will not then put resilient and resistant to elements like rain, sun and fire. This is literal. So therefore, this metaphorical and literal cannot coexist. Okay. Does it make sense? तो yes, I also एक सेकंड के लिए मैं भी सोच रहा था कि रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल इवेंट, बट देन ठीक है, दिस इज एक्सेप्टेबल, चल जाएगा, क्योंकि इन्होंने ये रिलीजियस की बातें की हैं यहाँ पे। सर मतलब एक वर्ड बताया है इस्लामिक, पर कोई इवेंट की मेंशनिंग, मतलब इवेंट का डिस्क्रिप्शन तो कहीं वैसा मेंशन्ड है नहीं सर, क्योंकि इसलिए आई एलिमिनेटेड दैट। देखो क्या होता है ना कि अब सी, if you give them credit that they are so good that they will create something which will be very very logical, then you are overestimating them. You get my point? Okay sir. मतलब इनको परफेक्ट मान के मत चलो, ये ऐसी गड़बड़ करेंगे, ठीक है? तो आपकी बात मैं मान रहा हूँ, मतलब आई एम डेफिनेटली आई एम इन सिंक विद व्हाट यू आर सेइंग कि रिलीजियस इवेंट नहीं है, बट ठीक है यार। अब देखो, जो लोग सवाना हाइपोथेसिस को सवाना एनवायरनमेंट बता सकते हैं, तो वो इतनी बड़ी छोटी मोटी गलती तो कर ही सकते हैं, राइट? राइट। बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, दिस कैन नॉट बी जस्टिफाइड। दैट्स व्हाई आई आल्सो वेंट इमीडिएटली फॉर दिस वन, क्योंकि यस, फॉर जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा यार इनको बड़ा सा कैनवस मिल गया है, लेकिन फिर बोल रहा है अरे रेजिलिएंट एंड रेजिस्टेंट टू एलिमेंट्स, तो फिर वो नहीं चलेगा, है ना? ओके सर। यस भुवन। यही यही रीजंस के चक्कर में बताऊं, मैं हार्ड ही कह रहा था कि मेरे को थोड़ा हार्ड लगा था IMS नहीं, हार्ड नहीं है यार। देखो, आप जबरदस्ती में भी ठीक है, आप ठीक है, यू कैन से दैट हार्ड है जो भी है, लेकिन हाँ ठीक है, तो सत्यार्थ का सही है, यही रीजन की वजह से लग रहा था जो कि भी है, एटलीस्ट जो भी है, इट इज बेटर देन एमकैट, दैट आई फुल्ली एग्री। एटलीस्ट एमकैट से तो बेटर है ये, ठीक है? चलो आगे चलते हैं, अभी लेट्स गो अहेड। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन पर्पस, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। थर्ड पैरा में उसने यही बताया कि देखो बाकी कंट्रीज में इनको सिर्फ डेकोरेट करने के लिए आती है, यहाँ पे इनको एज अ पार्ट ऑफ द होल बिल्डिंग आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट में लगा दिया जाता है। मतलब ये इटसेल्फ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इट इज नॉट जस्ट एन एक्सेसरी, जैसे कहते हैं ना कि यार एक तो केवल एक्सेसरी हो गया, लेकिन एक जो है कि वो मतलब मेन चीज है, वही हीरो है वहाँ का। तो टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग इन विच द एज़ुलेज़ोस आर क्रिएटेड एंड displayed in Portugal. Importance of context and setting, इसको रख लेते हैं, बहुत गलत नहीं लग रहा, ठीक लग रहा है। To compare the different types of designs, ये तो इसका पर्पस नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन बताना से थर्ड पर, ये छोड़ दो। To describe azulejo as specifically created for architecture, they are often tied to the place and context, ये भी अच्छा ऑप्शन है, इसको रख लेते हैं। To highlight that they are simply not decorative elements but integral part of this, ये भी अच्छा। राइट, तो इसमें अब बताइए कि
मतलब इसमें तो 3 हमें ऑप्शन दिख गए जो कि ठीक ठाक लग रहे हैं, एक ही खाली एलिमिनेट हुआ. सो हाउ डू वी देन चूज द आंसर? हाउ डू वी चूज द आंसर? वो लग रहा है better लग रहा 4 है. क्यों लग रहा है? हाँ देखो 4 इसलिए लग रहा है क्योंकि 4 में एक ये पॉइंट एडिशनल है जो इन्होंने ये कहा ना कि दूसरी कंट्रीज में सिर्फ डेकोरेट करने के काम में आता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे होता है वो नहीं है ना. यहाँ पे वो एक बहुत ही स्पेसिफिकली आर्किटेक्चर के लिए क्रिएट किया जाता है, तो इसलिए वो काफी क्रिटिकल है. तो अब अगर आप टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग, इसमें अगेन वो वाला पॉइंट नहीं आया. सेकंड थर्ड वाले में भी वो पॉइंट नहीं आया, ठीक है. लेकिन टू हाईलाइट दैट दे आर नॉट सिंपली डेकोरेटिव एलिमेंट्स but integral parts. So this that way fourth becomes a better answer than these two. Do we agree? Okay. Yes. The basis all of the following can be regarded as true except. So study and appreciation can tell us a lot about the history and cultural heritage. ये तो true है. अब देखो यहाँ पे बता दिया इसने आर्ट वर्क फ्रॉम आइडियाज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड की बात नहीं हुई है इसमें. यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक मोटिव्स दिखाए हैं और उसमें यहाँ पे एक इनके खुद के जो मोटिव बन रहे हैं वो बताएं. इसमें अराउंड द वर्ल्ड वाली बात नहीं हुई है, तो ये एक फैक्चुअल डिस्टॉर्शन. दैट्स व्हाई दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर. ये तो इंट्रोड्यूस बाय मूड्स बताया हुआ उसने, है ना, तो दिस इज नॉट द आंसर. दे हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज, ये भी बताया हुआ है इसमें. करेक्ट आंसर 2 है इसमें. यस वंशिका. सर सेकंड में वर्सेटाइल इनफ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पूरा पढ़ा उसके अंदर ये था ना कि बहुत स्पेसिफिक है अपने कल्चर और इसको लेके, अपने आर्किटेक्चर को लेके. दैट्स व्हाई. करेक्ट, ठीक है. दैट आल्सो इज अ गुड पॉइंट. यस अनुभव. सर मुझे क्वेश्चन 3 में फिर से प्रॉब्लम है. मतलब यहाँ पे सर मेंशन कर रहा है कि अदर कंट्रीज सर्टेनली यूज सिरेमिक टाइल्स टू डेकोरेट वॉल्स एंड बिल्डिंग्स बट नॉट टू द सेम एक्सटेंट एंड इन द सेम डेलिबरेट वेज एज इन दिस कंट्री. मतलब क्लियरली आर्किटेक्चर तो दिखा ही रहा है. नो बट ये कहाँ पॉइंट है उसमें बाकियों में कि वहां पे दूसरी जगह तो सिर्फ डेकोरेटिव के लिए यूज करते हैं और यहाँ पे उसका बहुत सिग्निफिकेंस ज्यादा है. देयर इज अ मच डीपर मीनिंग टू इट. सी इन दोनों में ऑप्शन में ये जरूर बताया हुआ है कि देयर इज अ डीपर मीनिंग टू इट, बट थर्ड पैराग्राफ स्पेसिफिकली में ये भी बताया हुआ ना कि अदर कंट्रीज, ठीक है, अदर कंट्रीज यूज सिरेमिक टाइल्स टू डेकोरेट बट नॉट टू द सेम एक्सटेंट एंड सेम वे डेलिबरेट. मतलब ज्यादा ही करता है. मतलब इजंट इट? क्या जी? मतलब अदर कंट्रीज कम एक्सटेंड में करता है, पोर्टुगल थोड़े ज्यादा एक्सटेंड में ये एज ए अज़ुलेजोस ज्यादा एक्सटेंड में करता है. मतलब हाँ तो ठीक है ना कि दे आर नॉट सिंपली डेकोरेटिव एलिमेंट बट इंटीग्रल पार्ट्स. तो उसमें ये भी लिखा ना कि आप उसमें उठा के ले जा सकते हो उसको. इन अदर कंट्रीज यू कैन रिमूव द टाइल्स एंड मूव देम फ्रॉम वन वॉल टू अ बिल्डिंग टू अनदर विदाउट डूइंग एनीथिंग. हाँ एग्जैक्टली सर, यही पॉइंट है. यही पॉइंट 3 में मेंशन्ड है. कहाँ है 3 में मेंशन लिया? 3 में सर दे आर ऑफन टाइड टू द प्लेस एंड द कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच दे आर डिस्प्लेड. वेयर इज इट कंपेयरिंग विद अदर कंट्रीज? देखो आपको ये बताना है ना, ठीक है, यहाँ तो बता दिया आपने, बट what if in other countries also is the same thing? He is trying to highlight a contrast that what is the significance of this for Portugal specifically. This is not done in the same way in other countries. तो वो आपने नहीं बताया ना, वो आपने इसमें बताया 4th में. So that was the difference. But yes, these were close. That's why I said that we shortlisted 1, 3 and 4 and we tried to look for the difference between these. And the difference was given in this. देखो कभी आपको बहुत क्लोज ऑप्शन दिखते हो ना, तो डोंट बी फिक्सेटेड ऑन द similarities between those options. Try to look for the difference in those options, and then that will lead you in the right direction. Okay. Yes, Aman. सर आपने ये वाला पैसेज किया, उसके बाद 4th वाला लग रहा है कि मिस्टेक था. 4th वाला नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए था. ओके सर ऑप्शन क्वेश्चन 4 में भी स्टडी कहाँ बताया सर? स्टडी एंड एप्रिसिएशन क्या चीज? फर्स्ट ऑप्शन में स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ एजुलेजोस एक है. मतलब दिस इज अ पार्ट ऑफ अ कल्चर हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ पोर्टुगल. मेक सेंस. बट ये अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये भी तो कहीं नहीं बताया ना. नहीं ये अच्छा है पर स्टडी, वेयर इज स्टडी मेंशन्ड? आप क्वेश्चन तो पढ़ो यार. मतलब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो जा रहा थोड़ा? क्यों यार? आप अगर वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप व्हाट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाटएवर यू रेड. सो कैन यू नॉट से दैट अगर हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें उसको
पोर्चुगल की हिस्ट्री और आर्टवर्क के और कल्चर के बारे में पता चलेगा अज़ुलेजो के को करने से। तो ये तो बिल्कुल इन्फर कर सकते हैं ना, इट कैन बी रिगार्डेड एज ट्रू। बट अगर ये हम क्या रिगार्ड कर सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड कैन बी अगेन माय क्वेश्चन इज हाउ डिड यू इफ यू चूज वन देन हाउ डू यू एलिमिनेट दिस? सर यहाँ पे इस पैसे में मेरे को लग ही रहा था, मतलब हर एक क्वेश्चन में मल्टीपल केसेस पॉसिबल आ रहे थे, तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था एलिमिनेट करने में। नहीं थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, ठीक है। यस ओके, आई एम नॉट सेइंग दैट दीस आर वेरी गुड ऑप्शंस, very good questions, but within the circumstances this can be ruled out. Okay, second can be easily eliminated यार, because around the world तो है ही नहीं ना यार। देखो यहाँ पे आप study और appreciation, see you are I think focusing on wrong things is what my understanding is. You are focusing on inconsequential things while ignoring the more important things that should be focused on. आपने पिछले वाले जो इसमें भी हमने डिस्कशन जो किया उसमें भी आपने उसी के ऊपर शायद फोकस किया था, and you ignored this and you were intent on this. तो आप थोड़ा सा इसको चेंज करो, अपना फोकस जो है ना वो try to put on more significant things which are strictly a no-no. मतलब कौन सी चीज हम बिल्कुल ही पैलेटेबल नहीं है, छोटी मोटी चीज जो ऊपर नीचे उसको इग्नोर करो, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी, है ना? यस ओके, ऑलराइट, लेट्स गो नाउ टू, आई वेंट टू द थर्ड पैसेज आफ्टर दिस, हैप्पीनेस रेवोल्यूशन। इसके ऊपर बहुत पढ़ा हुआ है हमने, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो हैप्पीनेस रेवोल्यूशन सर एक बार थोड़ा फिर से थोड़ा डिटेल में अगर टाइम मिलेगा तो बता दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कौन सा हैप्पीनेस वाला जो रेवोल्यूशन? अच्छा, हैप्पीनेस रेवोल्यूशन। नहीं, हैप्पीनेस रेवोल्यूशन मतलब क्या है? आजकल हर आदमी आपको हैप्पी बनाने की कोशिश कर रहा है ना। आजकल हर थेरेपिस्ट, हर एवरी पर्सन, एवरी मोटिवेशनल स्पीकर और एवरी डैम पर्सन इज आउट देयर टू मेक यू हैप्पी। तो जैसे इंडस्ट्रियल और डिजिटल रेवोल्यूशन है, वैसे ही हैप्पीनेस रेवोल्यूशन हो गया है। द साइंटिफिक स्टडी, लेबोरेटरी रिफाइनमेंट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन of happiness are all big business, but just as mass produced plastic items lack any lingering aura of artisanship, so too the isolated distilled and monetary product that has been studied and developed and sold back towards happiness shows little continuity with traditional articulation. मतलब नकली happiness, मतलब happiness in a bottle as if they are trying to sell. So he's saying कि this is not really what traditional articulation of happiness is. So for millennia, philosophers have been aware that happiness is a concept difficult to define as much as it is a condition difficult to achieve. Many, though not all, ancient philosophers warned against conflating happiness with the current sensation of contentment or pleasure, preferring to understand it as a long-term condition of soul or dimension of moral character. Many also argued happiness is an objective state that attaches to a given individual, whether the individual has any first-rate experience or not. So what he's saying is, देखो, जो philosophers कह गए हैं कि बहुत ही difficult concept को define करने के लिए और even more difficult achieve करना है, और अगर आप उसको सिर्फ कंटेंटमेंट और प्लेजर के करंट सेंसेशन से इक्वेट कर रहे हो, देन दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन ऑफ द सोल। ओके, और हैप्पीनेस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव स्टेट दैट अटैचेस टू अ गिवन इंडिविजुअल, whether that individual has any first person experience of it or not. तो हैप्पीनेस इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्टिव स्टेट नहीं है, मतलब कोई बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं बोल सकते हो कि जैसे 1 2 3 4 कि हाँ है नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। For Aristotle, happiness is dependent on virtue, activity of soul expressing virtue. Virtue is simply that excellence. Just as excellence of a knife is wrapped up in cutting and excellence of fire in burning. So a corn that manages to become an oak, thereby realizing the particular excellence, is happy, or at least that is not totally distinct from the virtue. तो आपने अगर अपना जो पोटेंशियल है वो अचीव कर लिया तो आप हैप्पी हो, ठीक है। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने अगर अपना पर्पस अचीव कर लिया तो वो हैप्पी है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एरिस्टोटल डिफाइंड हैप्पीनेस एज। तो इफ हैप्पीनेस इज अंडरस्टूड दिस वे, देन एज अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंस क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ एनी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ देम, द प्रोजेक्ट ऑफ आइसोलेटिंग इट्स मॉलिक्यूल्स एंड सेलिंग इट टू पब्लिक अपीयर्स डाउनराइट अब्सर्ड। तो अब इस तरीके से अगर हैप्पीनेस है तो उसको आप अगर आइसोलेट करके और बेचने की कोशिश कर रहे हो तो ये अब्सर्ड बात है। You can sell a person a lottery ticket, but you cannot tell them the luck that will make it the winning one. That involves a whole cosmic arrangement that precedes us and frames our existence. So, मतलब it is much bigger and much beyond. In the happiness experts' efforts to isolate the fundamental molecules and to measure this by qualitative means, they have wittingly or not rendered happiness into something money-like, where having more units of it makes you better off and leaving fewer
does the opposite. While happiness studies as a field is invested in surmounting and contrasting itself with the science of economics, nonetheless is open to economics that this field looks as its imperfect ancestor. Happiness studies seeks to position itself as economics with a human face. तो अल्टीमेटली वही है कि it basically, whether they like it or not, so wittingly or unwittingly, आपने हैप्पीनेस को मनी लाइक बना दिया है कि ज्यादा है तो आप खुश हो, कम है तो आप दुखी हो. ठीक है, तो अब आप इसको चाहो तो लाख इसकी जो स्टडीज है वो इसको कंट्रास्ट करने की कोशिश करो इकोनॉमिक्स से, लेकिन इकोनॉमिक्स जो है उसके बीच में आ ही जाता है. हैप्पीनेस स्टडीज सीक्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज इकोनॉमिक्स विद अ ह्यूमन फेस. तो इस तरीके से इसने एंड किया है. लेट अस नाउ लुक एट the questions. Which of the following best represents the essence? Yes, Aman? थोड़ा डेंस नहीं था पैसेज? नहीं, डेंस नहीं है यार, डेंस कुछ नहीं है. क्वेश्चन देखो ना आप, इसमें कुछ भी डेंस नहीं है. क्वेश्चन देखो आप, उससे समझ में आ जाएगा. इसमें क्या डेंस लगा आपको? देखो, ये बोल रही कुछ कर रहा है कि हैप्पीनेस जो होती है वो आदमी का एक ऐसी स्टेट है कि वो स्टेट उसको ऐसा नहीं कि कोई मटेरियल चीजों से या पैसे से उसको डिफाइन होती है, लेकिन लोगों ने उसको उसी तरीके से करना शुरू कर दिया है. दे हैव स्टार्टेड मार्केटिंग इट एज इफ इट्स सम ऑब्जेक्ट, इट इज एज इफ इट्स सम मनी, एंड हैविंग मोर ऑफ इट विल मेक यू प्लीज विथ योरसेल्फ, और हैविंग लेस विल मेक यू अनहैप्पी, समथिंग लाइक दैट. तो वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है. So happiness is a long-term condition of a soul or a dimension of moral character, and that it cannot be isolated, distilled, and monetized like a product. Can we keep it? इसको रख सकते हैं. Scientific study and commercialization of happiness have rendered it something money-like, where having more of it makes you better off and less does the opposite. ये भी रख सकते हैं, अच्छा option. Current approaches to happiness equate it with the possession of money and fails to acknowledge the complex and multifaceted nature of happiness as a subjective experience. The scientific study of happiness, the interventions aimed at increasing it and its commercialization have transformed happiness into a commodity. तो इसमें क्या चारों ही लग रहे हैं? क्या लग रहा है? Which one do you think? मेरे को सर 2 and 4 में था डाउट. 2 and 4. First. तो सेकेंड एंड थर्ड में डाउट था. Second and third, okay. अब देखो, कमोडिटी बनाया क्या उसको? कमोडिटी नाम दिया है क्या उसने कहीं पे कि ये कमोडिटी बन गया है? कमोडिटी नहीं बनाया उसने. मनी लाइक बोला है बस. हाँ, मनी बोला है उसने. मनी लाइक, राइट? विटिंगली और नॉट रेंडर्ड इनटू समथिंग मनी लाइक. तो ये तो हम रूल आउट कर सकते हैं. हैप्पीनेस इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशन, लेकिन इसको ये नहीं बताया है कि it cannot be isolated, distilled is okay, but people are trying to do exactly the same. करंट जो हैप्पीनेस स्टडीज हो रही है, साइंटिफिक स्टडी हो रही है, वो एग्जैक्टली यही करना चाहती है. तो इसलिए ये अधूरा है. करंट ऑप्शन पोजीशन की डेफिनेशन ज्यादा लगी rather than being the essence of passage. कौन सी? फर्स्ट जो ऑप्शन है. हाँ, ठीक है, करेक्ट. डेफिनेशन ज्यादा लगी. Current approach to happiness equates it with possession of money and fails to acknowledge the complex and multifaceted nature of happiness as a subjective experience. Equates it with possession of money. यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. Something money like is okay, but equates it with possession of money, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. इसलिए इसमें हमने second is a among these better answer. Do we agree? Yes, sir. Dicey question. थोड़ा dicey question जरूर है. Not a very good. सर थर्ड का सेकंड पार्ट भी तो इम्पोर्टेंट है समरी के लिए. एसेंस मतलब fails to acknowledge. यस सर, उसकी भी तो बात हुई है पैसेज में. Agreed. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे अड़ गई ना. Equates it with possession of money. सर जैसे हम लोग थर्ड में ये फ्लैग कर रहे हैं कि पोजीशन ऑफ मनी का जैसे, लेकिन क्या सेकंड कर रहे हैं? थोड़ी आवाज नहीं आ रही आपकी. सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे थर्ड में, अब आ रही है सर आवाज? हाँ. सर जैसे थर्ड में हम लोग फ्लैग कर रहे हैं कि ये पोजीशन ऑफ मनी थोड़ा सा डाइसी है,
तो सेकंड में भी हम लोग ये बोले ना, वेयर हैविंग मोर ऑफ इट मेक्स यू बेटर ऑफ, तो ये भी पोजीशन ऑफ मनी तो हो गया सेम। नहीं, मतलब लेकिन आपने इसको ये डिफाइन कैसे किया? ये इसमें तो इसने थोड़ा सा डिटेल्ड बताया ना। मतलब वही मुझे थर्ड का सेकंड पार्ट थोड़ा सा सही लग रहा था। और ये फिर ठीक है, सो नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एग्री। आंसर तो सेकंड है इसमें, लेकिन यस उत्कर्षा, व्हाट्स योर पॉइंट? तो मुझे फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा था बिकॉज सेकंड में उन्होंने सेम की सेम लाइन उठाकर ही डाल दी इसमें, सो आई वाज कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू। देखो, ओके, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। अगर आपको इसको ठीक करना है ना, तो आप सिर्फ थोड़ा ऐसा कर दो, इट शुड नॉट बी। अगर इसको ऐसा कर दें तो बेटर नहीं हो जाएगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इट कैन नॉट बी एंड इट शुड नॉट बी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लोग कर ही रहे हैं ना। जो साइंटिफिक स्टडी और कमर्शियलाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस है, they are isolating it and distilling it and monetizing it like a product, is it not? Yes, sir. So therefore अगर हम यहाँ पे लिखते कि it should not be, then that would have been better, right? Right. इसलिए हम A को हटा सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 और 3 के अंदर again yes there is a challenge here। possession of money को यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि बोल रहे हैं कि ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो 3 इज अ बेटर आंसर, बट 2 दिया हुआ है उसने, राइट? So again, dicey question. Agreed? चलो, Yes, which of the sir. following best describe the happiness revolution? इसमें कोई चैलेंज है? No, sir. No, First. sir. Option 2. ऑप्शन बॉम्बे। कंज्यूमरिज्म कहाँ आ गया है यहाँ पे यार? A modern movement that has emerged with the goal of achieving greater, ये तो ठीक है ना? ये बाकी के ऑप्शन इसमें एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो 11th, relationship between happiness studies and economics. Happiness studies and economics are distinct disciplines that strive to measure and explain human happiness, sometimes in competition with each other. हाँ, गलत है। Seeks to replace economics as dominant approach, ऐसा happiness studies seeks to replace, draws on the concept and method of economics, ये यहाँ पे बोला है इसने एंड में, है ना? The field is deeply invested in surmounting and contrasting itself with this. Nonetheless, it is often economics that this field looks to as its imperfect ancestor. मतलब कि इसका ये sees economics as a precursor to its own field, right? तो यहाँ से सपोर्ट हो जाएगा ये। Happiness studies is a broad field with ancient, ये तो anyway हटा दो। तो इसमें 3 करेक्ट आंसर। None of the following statement is implied by the arguments of the passage except the scientific study can provide insights, none of which except double negative क्या होगा? क्या होगा? one is implied. Which is implied? Scientific study can provide insights into the factors that which can inform, ये तो अच्छी, ये तो गलत है। Laboratory can help practices, again ये दोनों बिल्कुल opposite हैं। Modern approach is a desirable state which can shift societal values away from purely materialistic goals. उल्टा, emphasis on this ignores the subjective experiences which may differ from quantitative. D is the right answer. तो अब ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन जरूर मैं आई एग्री दैट दिस वाज अ डाइसी क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मार्क 3 क्वेश्चंस, इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सब प्रीकर्सर का मीनिंग क्या है? आवाज नहीं आई आपकी। सब प्रीकर्सर का मीनिंग? प्रीकर्सर तो जो पहले आता है उसके, इधर एंसेस्टर बताया ना उसने उसको, इम्परफेक्ट एंसेस्टर। प्रीकर्सर भी समथिंग दैट कम बिफोर समथिंग एल्स। ओके सर। ऑलराइट, तो maybe you might say that okay we were better off doing the 4th one, ऐसा है क्या? पर ठीक है, चलो let's look at this one. This was also not a very difficult passage. इसमें ये बता रहा है कि जो अर्बन हिस्ट्री है, ठीक है, तो इन्होंने इनके काफी इंस्टीट्यूशंस और जर्नल्स हैं सोशियोलॉजिस्ट ने, लेकिन इनको लिटिल अटेंशन दिया है। और रिसेंट राइज ऑफ ग्लोबल हिस्ट्री जो है, इसने कोई भी हेल्प नहीं की अर्बन हिस्ट्री को।
तो रिजल्टिंग प्रेजेंट माइंडेडनेस लीड्स टू ब्लाइंड स्पॉट्स. सिटीज जो है वो प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री एंड दे चेंज ओवर टाइम. Specific ethnic community lives in a given city depends on how their arrival related to development in the time. तो अब इसमें दो कंट्रास्ट बताए इसने कि न्यूयॉर्क में और ब्यूनो एरी. तो ब्यूनो एरी इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना. तो न्यूयॉर्क में एक लिटिल इटली करके जगह है ना. लिटिल चाइना भी होता है कई जगहों पे, सैन फ्रांसिस्को में है. अगर आप सिंगापुर जाएंगे तो वहाँ पे लिटिल इंडिया भी है. तो ये जो जगह होती है ये सोशल, शिकागो स्कूल स्कॉलरशिप बताती है इस चीज को कि सोशल डिस्टेंस हाइपोथेसिस, मतलब कि जितना कल्चरल डिफरेंस बिटवीन इमिग्रेंट ग्रुप होता है और होस्ट सोसाइटी, उतना इमिग्रेंट्स एक ही जगह पे रहते हैं. दे डोंट स्प्रेड देमसेल्व्स आउट. तो आर्ग्यूमेंट होल्ड दैट सिंस इटालियंस वर सोशियो कल्चरली नॉट सो डिस्टेंट फ्रॉम अर्जेंटीना's कैथलिक स्पेनिश स्पीकिंग मेन स्ट्रीम, दे डिड नॉट एंड अप इन स्पेसिफिकली इटालियन नेबरहुड्स. तो ये शिकागो स्कूल कहता है कि जो लिटिल इटली है ये यहाँ पे न्यूयॉर्क में इसलिए बना क्योंकि इटालियंस वर कल्चरली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन्स एंड देयरफॉर दे वांटेड टू लिव इन अ सेग्रीगेटेड प्लेस. लेकिन ब्रूनो एरी में इन्होंने लिटिल इटली इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये लोग का कल्चर जो है वो वहाँ के लोगों से काफ़ी सिमिलर है. ऐसे करके उन्होंने एक्सप्लेन किया. ठीक है. बट एज एन एक्सप्लेनेशन वो वाई लिटिल इटली फॉर्म इन न्यूयॉर्क एंड ऑन दिस सोशल टर्न्स आउट नॉट टू वर्क. अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि ये गलत है ऐसा कहना. Is rests on flawed assumption that city had a definite shape and we have to ask ourselves only how people spread in it. इसमें तो हम फ्लॉड assumption लेके चल रहे हैं कि एक सिटी का स्टेट तो फिक्स्ड हो गया, ये फिक्स्ड इतनी सिटी है और इसमें जो लोग आते जा रहे हैं वो कैसे कैसे बस रहे हैं यहाँ सिटी में. तो ऐसा नहीं है. We also know that Spanish immigrants in Buenos Aires who shared even more socio-cultural traits with Argentine society nonetheless clustered much more spatially. लेकिन यार स्पेनिश लोग जो बाद में आए वो लोग तो बहुत ही क्लस्टर्ड रहे, जबकि स्पेनिश लोग आर मच मोर क्लोजर, क्योंकि ये तो अर्जेंटीना वगैरह ये सब तो स्पेनिश स्पीकिंग ही जगह है. तो इटालियंस बल्कि इनसे दूर हैं कल्चरली. तो ये कैसे हो गया? तो इसलिए इसका मतलब है कि कल्चरल डिफरेंसेस की बजाय कोई और फैक्टर है इसमें. देयर इज समथिंग एल्स एंड दैट इज एसेंशियली हिस्टोरिकल. कि जब इटालियन इमिग्रेंट्स आए तब उस टाइम पे क्या हुआ कि सिटी जो थी वो छोटी थी. तो दे सेटल्ड ऑन स्मॉल रूरल प्लॉट्स इन द देन पैम्पस. तो जैसे ये सिटी है तो ये लोग आए तो ये बाहर आउटस्कर्ट्स पे बस गए यहाँ पे. फिर धीरे धीरे वो सिटी बढ़ के एक्सपैंड हो गई. तो जब सिटी एक्सपैंड हो गई तो ये तो कल्चरली स्प्रेड हो गया ना फिर. मतलब दे वर नॉट देन रिस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक एरिया इन ब्यूनो एरी. सो दिस इज द रीजन गिवन बाय दिस गाय or this author for not being Italy not being there in Buenos Aires. Okay, so the massive growth of city set in the Italian immigrants wider spread over semi-urban areas led to the relatively even distribution in spaces late in the later censuses. The city came to the immigrants, not the immigrants to the city, a process for which there is little room in the Chicago school theory. तो Chicago school theory जो है वो यहाँ पे फेल हो जाती है. Much of the life and character of a city depends on where it was born, what kind of parents. All cities have two parents. सिंगापुर के बारे में बताया इसने. फिर 19th century commodity, global south such as this, trailing examples. City centers while outskirts emigrated. ऐसे करके बताया इसमें. तो ये लास्ट पैराग्राफ कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है. अगर होगा तो हम क्वेश्चन के लिए आ जाएंगे इसको. ठीक है. तो यहाँ पे बेसिकली आर्ग्यूमेंट इसका ये है कि शिकागो स्कूल की जो थियोरी होती है कि अगर एक किसी भी सिटी में इमिग्रेंट्स आते हैं और अगर वो सोशली आपसे कल्चरली बहुत दूर होते हैं, दे आर डाइवर्स फ्रॉम योर कल्चर, देन दे सेग्रीगेट एंड लिव टुगेदर इन अ पार्ट ऑफ द सिटी. सो दे आर फाउंड देन लोकलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया. तो इसीलिए वहाँ पे लिटिल इटली है न्यूयॉर्क में, लेकिन ब्यूरो एरिया में नहीं है. तो उसके लिए उन्होंने जस्टिफिकेशन दिया कि भाई इटालियंस का कल्चर तो इनके लोगों से मिलता हुआ है. लेकिन बोला फिर स्पेनिश जो आए वो क्यों फिर अपना लिटिल स्पेन बना के रह रहे हैं वहाँ पे. ऐसा उसने बोला नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको. जबकि स्पेनिश तो ज़्यादा कल्चरली क्लोज है. तो फिर उसका रियल एक्सप्लेनेशन आया कि जब इटालियंस आए थे तब सिटी छोटी थी, ये आउटस्कर्ट्स पे रहते थे. धीरे धीरे वो सब जहाँ पे वो रहते थे वो सब पार्ट ऑफ द सिटी बन गया. तो दे आर वेल स्प्रेड ओवर द सिटी. वेयर स्पेनिश जो थे वो बाद में आए तो वो आके फिर अपने अपने क्लस्टर्स में रहने लगे. तो ये बताया गया इसमें. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर. Let's look at the questions. Which the following, if true, would support the author's criticism of social distance hypothesis as the explanation of formation of Little Italy? तो ऑथर ने जो क्रिटिसाइज किया है सोशल डिस्टेंस हाइपोथेसिस को,
As the population and physical boundaries of New York expanded over time, clusters of Italian immigrant communities within the city tended to disperse and spread. ये तो बिल्कुल गलत है. ओके, न्यूयॉर्क के एक्सपेंशन की तो बात ही नहीं हुई है इसमें. और ठीक है, ऑथर का क्रिटिसिज्म जो है इससे तो वीकन हो रहा है, बल्कि स्ट्रेंथन नहीं हो रहा है, इससे वीकन हो रहा है. Clusters of Italian immigrants were not witnessed in the US, where immigrant movement had preceded urbanization. Okay, तो urbanization के पहले जो जहाँ पे immigrant movement हुआ था, वहाँ पे cluster नहीं मिलेंगे. So this basically supports the author's criticism of social distance hypothesis, that it is not just the difference in culture that leads to this clustering. ये किसी ने किया नहीं है क्या? कोई nobody seems to be participating. Maybe you've not done it. करा था मैंने थर्ड किया ऑप्शन. सर, मैंने किया था। अच्छा, आपने किया था? नहीं करा सर, नहीं करा. ऐसे सर इसमें क्या मार्क किया फिर? सर मैंने थर्ड. यस सर. Immigrants settled in around specific neighborhoods that offered opportunities for better living conditions and. लेकिन इसमें आपको इमिग्रेंट्स इन जनरल के बारे में बात करनी थी या इटालियंस के बारे में बात करनी थी? देखो एक फर्क है ना. यस. थर्ड ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन इन जनरल इमिग्रेंट्स के बारे में बोल रहा है, जबकि जो क्वेश्चन है दैट टॉक्स अबाउट इटालियंस. तो योर ऑप्शन शुड बी पर्टेनिंग टू इटालियंस, इजंट इट? हाँ सर. है ना, इसलिए थर्ड गलत है. Spanish immigrants settled after it developed into a city and created little Spain. इससे कोई लेना देना नहीं है. सर एक बार सेकंड वापस समझा दो, क्या तो समझ में नहीं आया था मुझे. ये जो सोशल डिस्टेंस हाइपोथेसिस है शिकागो स्कूल का, उसका ये कहना है कि जो इटालियंस आए थे न्यूयॉर्क में, उनका कल्चर इतना डिफरेंट था अमेरिकन कल्चर से कि उन्होंने अपने लिए एक लिटिल इटली बना लिया और वहां पे वो आपस में रहने लगे सारे लोग मिलके. दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ लिटिल इटली. यस सर. अब ऑथर कह रहा है कि भाई ऐसा नहीं है. ओके, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस. ओके, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. तो ऑथर का जो क्रिटिसिज्म है उसको कौन सा इसमें से सपोर्ट करेगा? तो अगर हम कह रहे हैं कि क्लस्टर्स ऑफ इटालियन इमिग्रेंट्स वर नॉट विटनेस्ड इन यूएस वेयर इमिग्रेंट मूवमेंट हैड प्रीसीडेड अर्बनाइजेशन, तो जो ब्यूनो एरी में हुआ कि वो सिटी पहले छोटी थी, ये आके बाहर रहने लगे, यहाँ पे अर्बनाइजेशन नहीं हुआ था. ठीक है, तो जब सिटी एक्सपैंड हुई तो उनके क्लस्टर नहीं दिखे वहां पे. तो यही लॉजिक इसमें यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में. सो दिस सपोर्ट्स द ऑथर्स क्रिटिसिज्म. है ना? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये इसमें, इस वाले पैसेज में से. Which of the following best describe the point author makes by comparing Italian immigrants in New York with Spanish immigrants in Buenos Aires? अहमदाबाद. ये इसमें क्लियर आंसर हो गया. Social distance hypothesis does not explain the reason for absence of crime. So this is okay. This is clear answer. Okay. According to passage, why did Spanish immigrants show more clustering in Buenos Aires? तो इसमें ड्यू टू ग्रेटर कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन स्पेनिश इमिग्रेंट्स एंड अर्जेंटाइन सोसाइटी कंपेयर्ड टू इटालियन. ये तो उल्टा है. दिस इज सपोर्टिंग द शिकागो स्कूल हाइपोथेसिस. सो दिस इज रॉन्ग. और इनके अंदर तो कल्चरल डिफरेंसेस थे ही नहीं, स्पेनिश और इसके अंदर अर्जेंटाइन में. तो ये तो गलत भी है, डिस्टॉर्टेड भी है, फैक्चुअली भी इनकरेक्ट. ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन स्पेसिफिक एरियाज ऑफ ब्यूनो एरी प्रेफर्ड बाय स्पेनिश. ऐसा तो नहीं बताया इसने कहीं पे भी कि ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी थी. ड्यू टू द फैक्ट दैट स्पेनिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड आफ्टर द सिटी हैड टेकन शेप. यही बताया ना इसने कि स्पेनिश इमिग्रेंट जो थे, इटालियन इमिग्रेंट्स अराइव्ड अर्लियर, देन फॉर देयर वाइडर स्प्रेड. राइट, स्पेनिश इमिग्रेंट बाद में आए तो वो फिर क्लस्टर बन गए उनके. राइट, सो देयरफॉर 3 is the right answer. Due to social cultural similarities leading to their clustering, again this is wrong. All right, as suggested in the passage, which of the following is not considered a potential flaw of current approach? Lack of attention to historical context. ये दिया हुआ है यहाँ पे. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है.
तो ये इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ से मिल जाएगा आपको। ओवर एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ सोशियो कल्चरल डिफरेंसेस, ये तो पूरे उसमें बात हुई है, राइट? दिस इज in the whole passage. Failure to recognize the heterogeneity of urban experiences, ये कहीं नहीं बताया हुआ है। Narrowing of scope of urban history to a few select cities and regions, ये कहीं नहीं बताया। Okay, therefore fourth is the right answer. ये थोड़ा रिलेटिव भी ऑप्शन लग रहा था फोर्थ वाला। क्या लग रहा था? फोर्थ वाला थोड़ा अजीब सा ऑप्शन लग रहा था, थोड़ा अजीब मतलब ये सर पैसेज के थ्रू। Alright, so let's go to the last passage now. तो ट्रीटमेंट इफेक्ट और सिलेक्शन इफेक्ट, अब इसमें क्या फर्क है? मरीन कोर फॉर एग्जाम्पल इज लार्जली ट्रीटमेंट इफेक्ट. It doesn't have enormous admissions office grading applicants along 4 separate dimensions of toughness and intelligence. तो ये जो मरीन कोर्स है, ये लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रिंजेंट ग्रेड करते हैं कि आपको इतना टफनेस इतनी इंटेलिजेंस हो तभी आपको भर्ती करेंगे, ये सबको भर्ती कर लेते हैं। लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग से जो आदमी बन के निकलता है, दैट इज व्हाट इज ट्रीटमेंट इफेक्ट. That means immaterial of what you were before you came in, you will come out much more stronger and maybe refined and maybe जो सब एक सैनिक होता है, सोल्जर, बिल्कुल वैसे बन के निकलोगे आप. A modeling agency by contrast is a selection effect institution. You get signed up by an agency because you are beautiful. अब मॉडलिंग एजेंसी में तो हर कोई नहीं घुस सकता, ठीक है? देयर आर सर्टेन नॉर्म्स, वही लोग घुस सकते हैं. तो दैट इज द सिलेक्शन इफेक्ट. At the heart of American obsession with Ivy League is the belief that schools like Harvard provide the social and intellectual equivalent of Marine Corps basic training. That being taught by brilliant professors and meeting other motivated students and getting a degree with that powerful name will confer advantages that no local state university can provide. Fueling the treatment effect idea are studies showing that if you take 2 students with the same SAT scores and grade, one of whom goes to a school like Harvard makes far more money 10 or 20 years down the road with another. तो अब इसमें ये जो आईवी लीग इंस्टीट्यूट के साथ में ऑब्सेशन है, तो इसमें बेसिकली ट्रीटमेंट इफेक्ट की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आएगा उसको इस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी कि वो दूसरी जगह पे कहीं भी नहीं मिल सकती. एंड देयरफॉर दैट पर्सन विल बी एबल टू मेक मच मोर मनी लेटर ऑन इन लाइफ. सो ही इज सेइंग दैट कि आईवी लीग के अंदर वो ट्रीटमेंट इफेक्ट को एट्रीब्यूट करते हैं. How do we know that 2 students who have the same SAT scores and grades really are equivalent? It's quite possible that the student who goes to Harvard is more ambitious and energetic and personable than and that those same intangibles are what account for his better career. क्या पता कि वो जो पर्टिकुलर आदमी है, देखो ये अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि 2 लोगों ने टाइम ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट या कोई भी सीएल ज्वाइन किया है, कहीं भी ज्वाइन किया. अब एक के 99.9 परसेंटाइल आ गए, और टाइम वाला जो है चौड़ा होके बोल रहा है कि ये मेरे कारण है, हमारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग हुई है उसके कारण इसके 99.9. भाई ये जरूरी थोड़ी है. वो जो आदमी है, हो सकता है जो आपके यहाँ पे आया वो इस तरीके का आदमी हो, मोर एम्बिशियस, एनर्जेटिक और पर्सनेबल हो, एंड देयरफॉर ही गॉट 99.99. आपकी ट्रेनिंग उसमें कोई भी काम, मतलब वो वैसे भी उसको आते, राइट? ही वुड हैव एनीवे गॉट दैट. तो इट इज, ये जो बोल रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट स्टूडेंट हु गोज टू हार्वर्ड इज मोर एम्बिशियस एंड एनर्जेटिक एंड दोज सेम इंटेंजिबल्स आर व्हाट अकाउंट फॉर हिज बेटर करियर सक्सेस. To assess the effect of the IVs, it makes more sense to compare the students who got into a top school with the student who got into that same school but chose to go to a less selective one. तो अब 2 स्टूडेंट दिए गए जिनके सेम मार्क्स है, जिनको दोनों जगह एडमिशन मिला, लेकिन एक ने हार्वर्ड गया और दूसरा किसी दूसरे में गया. 3 years ago, this economist published such a study, and they found when you compare apples and apples, the income bonus from selective school disappears. अब देखो डिफरेंस गायब हो गया कि अगर 2 लोग एक ही जगह सिलेक्ट हुए, लेकिन उसमें से एक ही आदमी अच्छी कॉलेज में गया, दूसरा थोड़ा दूसरे कॉलेज में चला गया, तो दोनों के बाद के जो लाइफ में मनी मेकिंग है, व्हाटएवर हैपेंड, they were not different. So income bonus from selective school disappears.
As a hypothetical example, take the University of Pennsylvania and Penn State, which are two schools a lot of students choose between. One is Ivy, one is state school. So एक Ivy है, Penn is much more highly selective. If you compare students who go to the two schools, the one who go to Penn have higher incomes. But let's look at those who got into both type of schools. Some of those who chose Penn and some of those who chose Penn State. Within that set, it doesn't seem to matter whether you go to a more selective school. मतलब दो लोग थे, अगर एक का सिलेक्शन हो गया यू पेन में और एक का पेन स्टेट, मतलब यू पेन में दोनों का हो गया, लेकिन एक आदमी यू पेन में गया, दूसरा आदमी पेन स्टेट में गया, तो फिर कोई फर्क नहीं दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है. Now you would think that the more ambitious student is the one who would choose to go to Penn, and the one choosing to go to Penn State might be a little less confident in their abilities or lower family income. And both of those factors would point to people doing worse later on, but they don't. तो ऐसा नहीं है कि आपको लग सकता है कि जो आदमी पेन स्टेट गया वो लेस कॉन्फिडेंट हो या उसकी फैमिली इनकम कम हो, क्योंकि यूपेन में फीस ज्यादा होगी, तो इसके कारण जो है बाद में वो आदमी अच्छा नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है. Kruger notes that students from lowest economic strata may benefit from attending an Ivy League school, but for most students, being hardworking and intelligent is enough to achieve success regardless of where they go to school. While attending an Ivy League may offer networking opportunities, school like Penn State is diverse enough to provide similar advantages. Ultimately, having an Ivy League on one's resume may open certain doors. If the student was able to gain admission, they likely possess the same qualities to succeed regardless of their alpha mater. वही बता रहा है कि भले यूपेन में या आईवी लीग स्कूल में ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर नेटवर्किंग, बेटर पढ़ाई हो सकती है, काफ़ी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का दोनों जगह हो गया है तो मतलब ये है कि दोनों के अंदर सेम क्वालिटी है रिगार्डलेस ऑफ वेयर अल्मा मैटर. तो बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई कि ऐसा नहीं है कि जो आईवी लीग स्कूल्स हैं वहीं से पढ़ के आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हो. अगर आपका सिलेक्शन वहाँ पे भी हो गया है और फिर आप किसी दूसरे स्कूल में जाते हो तो इसका मतलब है आपके अंदर सिमिलर कैपेसिटी है और आप उतना ही अच्छा करोगे. सो इट इज़ नॉट प्योरली दैट पर्टिकुलर ट्रीटमेंट इफेक्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस. ये बताया है, राइट? Based on the information in the first paragraph, which the following does not exemplify selection effect. Choosing a policy intervention such as a new tax policy based on impact of policy intervention. ये कहाँ से selection effect? Choosing a candidate based on characteristics and experience, ये तो बहुत easy question है यार. Yes sir. है ना, ये तो selection effect है. हाँ सर, हो गया था. Clinical trials based on age, ये भी बहुत easy है. Physical attributes. So see, this is a very easy question. आधे मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, राइट? यस सर, ये क्लियर था. सर आपके वो ट्रीटमेंट इफेक्ट और सिलेक्शन इफेक्ट क्या के एक्सप्लेनेशन के बाद ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे हैं मेरे को ऊपर. इन द पैसेज वो बहुत ही कंफ्यूजन लग रहा था कि कहना क्या चाहता है ये. हो अच्छा, ओके, चलो एनीवे कोई बात नहीं, लेट्स सी बाकी के क्वेश्चन कैसे हैं. According to Ellen Kruger, the fact that one who goes to school like Harvard makes far more money does not indicate that. The treatment effect principle followed in the selection process is not effective. The selection effect principle followed in selection process is not effective. If the same student did not go to Harvard, he would not earn that much. देखो एलन क्रूगर ने क्या लिखा है, एलन क्रूगर का पढ़ लेते हैं. When you compare apple to apple, income bonus from selective school disappears. मतलब वही बात है ना कि अगर एक स्टूडेंट दोनों स्कूल में सिलेक्ट हो गया लेकिन वो हार्वर्ड नहीं गया, वो दूसरे स्कूल नहीं गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि he cannot earn the same as the Harvard guy. So it does not indicate that if the same student did not go to Harvard, he would not earn that much. Yes, this third looks all right. ये इनका कोई मतलब नहीं है. ओके, दिस ये आई मीन आई कुडंट इवन फिगर आउट व्हाट दे ट्राइंग टू से. ये जस्ट लाइक दैट ऐसे बना दिया इसने. सर यहाँ पे ट्रिपल नेगेटिव भी है सर. हाँ जी, यहाँ पे ट्रिपल नेगेटिव्स भी इंट्रोड्यूस कर दिया इन लोगों ने. नॉट इंडिकेट, फिर डिड नॉट गो, फिर नॉट अर्न. हाँ नहीं ठीक है, देखो यही कह रहा है ना कि अगर एक स्टूडेंट
हार्वर्ड नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ही कैन नॉट अर्न दैट मच, है ना? इवन इफ ही डजंट गो टू हार्वर्ड ही कैन अर्न दैट मच. Yeah, if he does not go to Harvard, doesn't mean that he won't earn that much. This is okay. The student did not go to Harvard, he would still earn that much. ऐसा नहीं है, ये गलत है. 3 is the right answer. कि अगर वो आदमी हार्वर्ड नहीं गया तो भी वो उतना जरूरी नहीं कि नहीं कमाए. Does not indicate. हाँ, ट्रिपल करेक्ट, यू राइट, ट्रिपल नेगेटिव हो गया. सर ये मेरा गलत हो गया था सर, मैं 1 लगा दिया था सर. आपने क्या लगा दिया? सर 1 लगाया था ऑप्शन में, One नॉट का को तो नॉट इंडिकेट नहीं देता. नहीं, 1 का तो देखो, ट्रीटमेंट इफेक्ट प्रिंसिपल फॉलोड इन सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट इफेक्टिव. ये क्या बोलना चाह रहा है? मतलब आई कैन नॉट इवन फिगर इट आउट. यस वंशिका. सर मैंने इसमें 3 मतलब डायरेक्टली मार्क कर दिया, मैंने बाकी नहीं पढ़े. हाँ, ठीक किया आपने, ठीक किया. इफ यू गॉट द सेंस ऑफ इट कि वो ये कह रहा है कि अगर 2 लोग, अगर एक स्टूडेंट दोनों हार्वर्ड में सिलेक्ट हो जाता है और नहीं जाता वहां पे, तो कोई रीजन नहीं है कि वो सेम अमाउंट नहीं कमा सकता. या सर ये चीज मतलब मेंशन थी लास्ट में, तो दैट्स व्हाई. ओके. Which of the following can be validly inferred from paragraph 4? पैराग्राफ 4 में क्या कह रहा है? एज अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, यू पेन लिया इसने, पेन वाला लिया, ठीक है, 2 स्कूल में गया, वही बात बोल रहा है, वही बात बोल रहा है. तो लेट्स लुक एट दिस. Selectivity of a school plays no important role in determining the future earnings of its students. ऐसा है क्या? Selectivity of a school plays no role. I don't know what he's trying to even say. Selectivity of a school. Yes, selection criteria of a school. तो Yes, पेन स्टेट selectivity. और पेन हाँ? की बात. क्या? सर ये बोला पेन स्टेट और पेन चूज करने से उनके फ्यूचर अर्निंग पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एक मिनट. सर आई मार्क दिस. एक मिनट. Is there a difference between selection and selectivity? There is a huge difference. अगर हम ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ स्कूल प्लेज नो रोल, दूसरी बात देखो, आप एक बात समझो, ये इन जनरल स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा है. वो बात चल रही है उन लोगों की जो दोनों जगह सिलेक्ट हो गए हैं और एक जगह उसने छोड़ दिया, राइट? तो सिलेक्टिविटी ऑफ अ स्कूल, सिलेक्शन ऑफ अ स्कूल प्लेज नो इंपॉर्टेंट रोल, गलत. मतलब इसकी लैंग्वेज भी कुछ ठीक नहीं है ये वाले ऑप्शन की. ओके, तो एनीवे इसको छोड़ दो. स्टूडेंट हु अटेंड पेन स्टेट आर इक्वली केपेबल ऑफ अक्वायरिंग इनकम्स. भाई सारे स्टूडेंट या दोज हु गॉट इनटू बोथ पेन स्टेट एंड पेन. तो ये तो इसने बोला कि कोई भी स्टूडेंट जो पेन स्टेट में है वो इक्वली केपेबल है, तो ये तो गलत है. दिस इज नॉट अ करेक्ट इन्फरेंस. Students who were accepted at both but chose Penn State demonstrated the effect of treatment effect. No, not at all यार, ये तो गलत है. ट्रीटमेंट इफेक्ट तो आप बोल रहे हो कि अगर आपने पेन से किया, यू पेन से किया तो होता कि वो बड़ी अच्छी जगह है, नेटवर्किंग अच्छी होती है, ब्ला ब्ला. आपने अगर उसको लात मार दी पेन को, तो आपने फिर ट्रीटमेंट इफेक्ट थोड़ी दिखाया, तो ये भी गलत है. ये दोनों ऑप्शन देखो बहुत इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे. Higher earnings of Penn students are due to the selection effect in college education. Yes, selection effect है ना इसमें. कैसे है? क्योंकि अगर दोनों जगह जो सिलेक्ट हुआ आदमी, तो higher earnings of Penn students are due to selection effect. तो ये तो करेक्ट है. दिस इज जनरल थिंग. यस बोलिए रोहित. बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही. यस सर. सर हेलो सर. सर एक्चुअली मुझे फर्स्ट ऑप्शन में डाउट था सर कि वो सर एलिमिनेट कैसे हो रहा है. क्योंकि सिलेक्टिविटी ऑफ स्कूल तो इम्पोर्टेंट रोल है ना इसका फ्यूचर अर्निंग्स में. आप अगर एक स्कूल में, कौन से स्कूल में जा रहे हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना फ्यूचर अर्निंग्स के लिए आपकी. इज इट नॉट? तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. अगर आप हार्वर्ड में जा रहे हो तो आपकी अर्निंग अच्छी है,
अगर आप कहीं और जा रहे हो तो नहीं है, तो इस तो ये तो मतलब ये तो गलत है ना, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सो दिस इज रॉन्ग इन्फरेंस। यस बानी। So like before you are saying कि अगर if a student goes to Penn, then there is a selection effect in college education, right? फोर्थ ऑप्शन भी है। तो फिर सर अगर वो पेन स्टेट में जा रहा है तो फिर वहां तो वो ट्रीटमेंट इफेक्ट हुआ ना कि बिकॉज ऑफ द लाइक एजुकेशन ही इज गेटिंग द हायर इनकम एंड ऑल। एक मिनट देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये है पेन और ये है पेन स्टेट। यस सर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एक स्टूडेंट ए की, जिसको यहाँ भी एडमिशन मिल गया और यहाँ भी एडमिशन मिल गया, तो उसने इसको मार दी लात, ठीक है, और वो चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे उसको उतना ही पैसा मिला जॉब करने में जो कि यहाँ पढ़ने वाले को मिलता। ठीक है, यस सर। तो ये जो जिसने अब थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है कि स्टूडेंट हु वर एक्सेप्टेड एट बोथ बट चोज पेन स्टेट डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसको जो सेम मिला वो इज नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट ट्रेनिंग ही गॉट हियर, इट वाज बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इफेक्ट, बिकॉज उसके अंदर कैपेबिलिटी थी यहाँ पे भी सिलेक्ट होने की, तो इसलिए ये थर्ड बट हमने सर गलत। लाइक फोर्थ ऑप्शन में तो पेन के लिए सिलेक्शन इफेक्ट कह रहे हैं। नहीं, तो पेन के लिए कह रहे हैं ना कि पेन में अगर वो आदमी आया, देखो एक तो उसने एक बता दिया ना कि ये जो हार्वर्ड में आता है आदमी या अगर पेन में आता है तो इनका सिलेक्शन इफेक्ट नहीं होता, इनका मतलब सिलेक्शन इफेक्ट सॉरी ट्रीटमेंट इफेक्ट नहीं होता, सिलेक्शन इफेक्ट होता है। देखो पूरा आर्ग्यूमेंट क्या है पैसेज में उसका, अगर आप एक नटशेल में एक सिंगल लाइन में पूरा पैसेज समझना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर ये कहें कि आदमी IIM अहमदाबाद से पढ़ के उसको 40 लाख रुपए अगर मिल रहे हैं, तो ये IIM अहमदाबाद की ट्रेनिंग का इफेक्ट है ना, कि वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पे जो नेटवर्किंग है, वहाँ पे जो रिगरस शेड्यूल है, तो IIM अहमदाबाद में अगर आदमी पढ़ेगा तो ट्रीटमेंट इफेक्ट के कारण उसको 40 लाख मिलेंगे, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन भाई ऐसा नहीं है, IIM अहमदाबाद में जाते ही वो लोग हैं जो उस लायक होते हैं कि जो वहां पहुंच जाएं। तो अगर कोई आदमी IIM अहमदाबाद भी जा सकता है और IIM बेंगलोर भी जा सकता है, या चलो बेंगलोर तो बड़ी चीज हो गई, अगर सपोज इंदौर चला गया वो, तो ऐसा आदमी जो दोनों जगह सिलेक्टेड हो लेकिन वो अहमदाबाद फॉर सम रीजन अगर नहीं गया, वो IIM इंदौर चला गया, तो भी उसको सेम आगे देखा गया लाइफ में कि उसको सेम सैलरी पे दोनों पहुंच गए, क्योंकि वो IIM अहमदाबाद ट्रीटमेंट इफेक्ट के कारण उसको उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उसको पैसा सिलेक्शन इफेक्ट के कारण। तो इफ दैट गाय कैन गेट थ्रू इन IIM अहमदाबाद, दैट मीन्स ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट वेल इन लाइफ। यू गेट द पॉइंट। तो हियर ट्रीटमेंट इफेक्ट, लोगों को लगता है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्ट है कि IIM अहमदाबाद की पढ़ाई ऐसी है कि आपको 40 लाख के काबिल बना देती है, लेकिन ऑथर का कहना है कि नहीं भाई, 40 लाख की जो आपकी काबिलियत है वो आपके सिलेक्शन इफेक्ट में है, कि आप अगर उस लायक हो कि वहां सिलेक्ट हो जाओ तो मतलब आपके अंदर 40 लाख कमाने की क्षमता है, चाहे आप IBS से पढ़ के निकल जाओ, मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एक्सट्रीम, चाहे आप ICFAI बिजनेस स्कूल से पढ़ के निकल जाओ, लेकिन अगर आपने IIM अहमदाबाद को ठुकराया है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर 40 लाख की क्षमता है, कैपेसिटी है। देयरफॉर इट इज नॉट द ट्रीटमेंट इफेक्ट ऑफ एनी ऑफ दीज colleges, it is basically the selection effect. I hope I am able so to make this basically passage 3 and clear. 4 connected नहीं है, मतलब I thought कि 3 and 4 opposites हैं। नहीं, तो ये जो सिलेक्शन इफेक्ट है ना कि हायर अर्निंग्स, मतलब अगर सपोज यहाँ पे लिखा होता IIM A, द हायर अर्निंग्स ऑफ IIM A आर ड्यू टू सिलेक्शन इफेक्ट, तो ये तो सही है ना, दिस करेक्ट, राइट। तो आपको आई थिंक IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, इंदौर ये क्या सुन के शायद मेरे ख्याल से पैसेज ज्यादा अच्छे समझ में आ गया होगा। यस सर अब समझ में आ गया। इन जनरल आई एम सेइंग टू एवरीबॉडी, ऑथर का आर्गुमेंट ही यही है, ऑथर का आर्गुमेंट ही यही है कि भाई यहाँ पे आपको जो इस लायक बनाता है तो क्या वो कॉलेज बनाता है, या आप होते ही उस लायक हो कि आप बन जाओ। मतलब हाँ ये जरूर है कि अगर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन वहां पे नहीं होता तो ठीक है कि वो 40 लाख पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन अगर किसी आदमी का 40 लाख की कैपेसिटी, वो उसने यहाँ पे भी, उसका यहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया और वहां पे भी हो गया किसी कम वाले कॉलेज में, और वो किसी अच्छे कॉलेज में नहीं गया फॉर सम रीजन, तो फिर भी उसके अंदर कैपेसिटी है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इनहेरेंट स्किल्स, इट इज नॉट दैट द कॉलेज इज मेकिंग यू केपेबल ऑफ दैट। तो आई थिंक दिस पैसेज का क्रक्स आपको समझ में आ गया होगा, यस सर, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ फॉल्स कुड बी सीन एज कॉन्ट्रडिक्टरी। ओहो, आ गए हमारे
ये क्या है? डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो if true would be seen as not contradicting, right? यस If true, नहीं सॉरी, डबल नेगेटिव नहीं, सिंगल ही है, सॉरी सिंगल ही है, यहाँ कॉन्ट्रडिक्टिंग लिखा हुआ है, नॉट थोड़ी लिखा हुआ है, एक्सेप्ट भी नहीं लिखा हुआ है, सिंगल ही है। तो इफ ट्रू नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, राइट? तो ये वाला तो सही है ना, आईवी लीग स्टूडेंट्स आर ऑफन मोर एम्बिशियस एंड एनर्जेटिक देन देयर पीयर्स, ये तो है, दिस इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग, यस सर, यू हैव राइट? सो सेकंड इज द राइट आंसर। सर एक बार फर्स्ट वाला बताओ। ये कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स हो गया। हायर अर्निंग्स अकाउंट फॉर सिलेक्शन इफेक्ट नहीं है, सिलेक्शन इफेक्ट अकाउंट फॉर हायर अर्निंग। यू गेट द पॉइंट? दिस इज कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स। सिलेक्शन इफेक्ट्स अकाउंट फॉर हायर अर्निंग्स ऑफ आईवी लीग ग्रेजुएट्स। एग्रीड? हाँ सर। है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिवर्स हो गया कि हायर अर्निंग्स के कारण सिलेक्शन इफेक्ट नहीं है, सिलेक्शन इफेक्ट के कारण हायर अर्निंग्स है। यस अनुभव? सर पर यहाँ पे बेसिकली कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं हो जा रहा? लोग आईएम अहमदाबाद जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे पैसा ज्यादा मिलता है। नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। सर मतलब आईवी लीग्स आर प्रोड्यूसिंग ग्रेजुएट्स व्हिच डू वेल इन लाइफ, सो नो नो नो, अभी ऐसा थोड़ी लिखा है पैसेज में, ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि रिवर्स भी तो ट्रू है ना, हाँ? क्योंकि the people who have the potential also choose those type of colleges which No, he says that same guy can go to, इसकी जो रिसर्च हुई है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहां जा सकते थे लेकिन they've gone to the lower college। बहुत जबरदस्त रिसर्च हुई है यार, आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। एलन क्रूगर एंड स्टेसी डेल पब्लिश्ड जस्ट सच ए स्टडी, दे फाउंड दैट व्हेन यू कंपेयर, इसने तो बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं इसमें। ये द स्टूडेंट हु वुड हैव गॉट, देखो ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आईएम अहमदाबाद में भी वही फीस है और आईएम इंदौर में भी वही फीस है, लेकिन यूएस के सिचुएशन में बहुत फर्क है। वहाँ पे आईवी लीग के अंदर बहुत ज्यादा फीस है, तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं वहाँ पे, इवन दो दे आर केपेबल। ओके, तो दिस यू शुड लुक एट अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आल्सो, राइट? ओके सर। यस, रोहित को कुछ क्वेश्चन था एंड देन ये सर अभी सर आपने बोला ये अपोजिट क्या था ये सर, मुझे नहीं पता सर। क्या 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 अभी अभी क्लियर सर हो गया? अभी क्वेश्चन 6 में आपने बोला ना कि इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा अपोजिट हाँ, कॉमा, वो सर मुझे नहीं समझ आया क्या है सर। आप पिछले सेशन में नहीं बैठे थे क्या मेरे? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। नहीं, आपने फर्स्ट वाला सेशन में नहीं थे आप मेरे? नहीं सर, नहीं था। तो आप वो पूरा रिकॉर्डिंग रिव्यू कर लेना आज की, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो, जिसमें हमने इस तरह के सारे क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस किए, ठीक है? यस उत्कर्षा। सर ऑप्शन 4 में क्या प्रॉब्लम थी? अटेंडिंग आईवी स्कूल्स ऑफर्स यूनिक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो क्या ये यूनिक है? ऐसा लिखा हुआ है क्या उसने कि ये यूनिक है कहीं पे? इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज बट आर दे यूनिक? लेट्स रीड। कहाँ पे लिखा हुआ है यूनिक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज? कहीं लिखा हुआ है क्या? एक मिनट, एक मिनट। सर लास्ट पैराग्राफ, सर लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। हाँ, while attending an Ivy League may offer networking opportunities. Yes, unique is Where that. is unique नहीं लिखा ना? Right. यूनिक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ओके, यस प्रिंस। सर मेरा एक जनरल डाउट था, लाइक कि जैसे एमकेट हम करते हैं तो वहाँ मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब माइंड लगाना पड़ता है, क्योंकि उस क्वेश्चंस के ना थोड़ा पैसेज के बैकग्राउंड में जाना पड़ता था। किसको बोल रहे हो? मतलब सर एमकेट के क्वेश्चन जो थे ना, जो रहते हैं एमकेट में, तो उसमें ना थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ता है हर पैसेज के, क्योंकि उसमें पूरा मतलब ये नहीं रहता। और इसमें था कि इसमें वो था, तो इसमें मैंने वही ट्रिक यहाँ लगाई, तो वो यहाँ गलत हो गया। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब मिल रहे थे पैसेज से। तो आपको ये किसने कह दिया कि एमकेट जो क्वेश्चन आते हैं वो सही होते हैं, लॉजिकल होते हैं? नहीं, वही वो फंडा यार थोड़ा रॉन्ग कर गया था कुछ क्वेश्चंस में। देखो वही यार, मैं बोलना चाहता हूँ। देखो मैं आपको एक बार बताता हूँ मैं आपको। ये जो हर जानवर है ना, यहाँ पे बहुत सारे जानवर मार्केट में है। एक जानवर ये है, ठीक है, एक जानवर ये है, एक जानवर ये है,
एक जानवर ये है, इसकी मैंने कोई मॉक अभी देखी नहीं है। यस सर, ये भी आया है अभी नया नया, इस बार मैं नॉट डू आई वांट टू लुक एट इट, ठीक है। एक यस ऐसे सर। बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं मार्केट में, ठीक है, जो कि अपनी मॉक ले ले घूम रहे हैं, इनकी तो बात ही नहीं करता हूँ। अब देखो हर जानवर जो है ना एक यूनिक है इसमें। ये जो आदमी बनाता है इसका अपना कोई पर्सपेक्टिव है, इसका अपना कोई पर्सपेक्टिव, इसका अपना पर्सपेक्टिव। बट ये कभी गलती से मत समझ लेना कि इनके पर्सपेक्टिव और जो वहां बैठा हुआ है ऊपर वाला IIM वाला उसका पर्सपेक्टिव सेम है, ऐसा मत कभी गलती से समझ लेना। इसीलिए मैं आपको रोज रोज ये लेसन देता हूँ, चाहे आप बोर हो जाए सुन के, कि जब तक आप इसको इंटरनलाइज नहीं करोगे ना तब तक आपको असली एसेंस एग्जाम का समझ नहीं आएगा और आप इन्हीं की चीजों में भटकते रहोगे, ठीक है। तो यस आई वुड से दैट दिस इज स्टिल क्लोजर टू द एक्चुअल थिंग, बट टाइम जो है वो अब बहुत पिछड़ चुका है। मतलब उसके पहले ठीक ठाक होते थे, लेकिन मैं पिछले 2 4 5 अगर मॉक देखूंगा तो मैं कहूंगा कि वो मतलब he has totally lost it. These guys are still okay, still barring a few exceptions, जैसे हमने क्वेश्चन देखे कि कुछ क्वेश्चन में ऊपर नीचे हुआ इनका, बट मोर और लेस यू कैन से दैट ठीक है इनका फिर भी अभी ट्रैक पे है, लेकिन इसका तो मतलब दिवालिया निकल चुका है अकल का, ठीक है। तो उस एंगल से देखना है आपको, इसलिए जब जितना इसको इंटरलाइज कर सकते हो उतना करो। यस मानव। सर मुझे 13th वाले में एक छोटी सी चीज पूछनी थी हाँ बोलिए। कि सर मैंने जब करा था तो मैंने सेकंड और फोर्थ तो एलिमिनेट कर दिया था, फर्स्ट और थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन था, तो एक बार वहां से बता सकते हो कि फर्स्ट और मतलब थर्ड में? हाँ सर। नहीं देखो यार, सिलेक्शन और ट्रीटमेंट में फर्क। सिलेक्शन मतलब क्या है कि आप एक सर्टन क्राइटेरिया डिफाइन कर रहे हो, उस हिसाब से लोगों को ले रहे हो आप। और ट्रीटमेंट वाले में ये था कि भाई आप किसी को भी ले रहे थे, तो आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस और एजुकेशन को ले लिया, यहाँ पे आपने एज, जेंडर और मेडिकल हिस्ट्री को ले लिया, यहाँ पे आपने हाइट, वेट और स्पीड को ले लिया। तो आपने अगर उसके बेसिस पे सिलेक्ट किया तो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया ना वो तो। यस सर ठीक है। है ना, यहाँ पे आपने टैक्स पॉलिसी के इम्पैक्ट को लिया, मतलब कि ये सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। ओके, यस सर, दैट्स द डिफरेंस। चलो, ऑल राइट, सो वी विल वाइंड अप द सेशन। एनी क्लोजिंग रिमार्क्स, एनी पॉइंट्स दैट यू वांट टू मेक बिफोर वी वाइंड अप? इट वाज टफ टू चूज द सेकंड RC। नहीं यार, सेकंड क्या, थर्ड। और थर्ड यार देखो मैं आपको बता दूं सिंपल, अगर 2 RC मुझे करनी होती तो मैं पहली वाली करता इसमें, और मैंने थर्ड चुनी। सेकंड भी अच्छी थी, सेकंड भी कर सकते थे, सेकंड और थर्ड में तो कुछ भी ले सकते थे। फोर्थ में देखो, फोर्थ थोड़ी सी समझने वाली ज्यादा थी, और ये लंबे लंबे आंसर इसमें जो इस तरह से दे रखे हैं, तो इससे भी थोड़ा सा आदमी कहाँ गया वो लंबे लंबे आंसर इसमें कहाँ दे रखे हैं, ये इस तरह के दे रखे थे। ये तो ईजी था क्वेश्चन, ठीक है। सी अगेन देखो, मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए कि जो आपने RC कर ली मॉक में, उसके बाद में दूसरी वाली 2 करके देखो, और अगर आपको उसमें ज़्यादा अच्छा आ गया तो मतलब कि आपने गलत चुन ली, ठीक है। तो देन नेक्स्ट टाइम यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल। ये कोई फुल प्रूफ प्रोसेस नहीं है, मेरे पास में ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। ये आपको मतलब दिस विल हैपन, इट डिपेंड्स अपॉन लक ऑल्सो। तो इसमें ज़्यादा मतलब आप ये कोई प्रोसेस डिफाइन करने की कोशिश मत करो कि हम तो 2 परफेक्ट ही लेके निकलेंगे वहां से, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं और जो सोचते हैं कि हम जो चूज करेंगे वो बेस्ट चूज करेंगे, अल्टीमेटली दे एंड अप रिग्रेटिंग। ओके, दिस यू एंड आई नो, आई मीन दिस इज अ फिलोसफिकल थिंग। किसी भी चीज में, वेदर इट इज रिलेशनशिप्स और वेदर इट इज एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ, there are people who think that they are smarter than others and they will always choose what is the best, but they will end up crying. Okay, this is my experience. So इसलिए जो जितना होता है उतना करो, उसके बाद में ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। अपनी तरफ से प्रोसेस सही रखो, लेकिन फुल प्रूफ कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।